Hello everybody, my name is Satyam Jain and welcome you to understand UPSC. And in this particular lecture, we are going to discuss the PT 365 booklet for the subject of economy. Now, please, I'll take just 1 minute to explain you how to use this particular lecture. So, from economy, there are two kind of questions that generally comes. The first is the concept based question, and the second are the facts based questions. If you will pick up PYQs, you'll find these two type of questions severely repeating. Now, the concept based questions are related to a certain specific areas. Either you have to cover them through your static, or you have to cover them through the 550 MCQ playlist that I have made, or I'll also try to give you the static linkages of concepts in this particular lecture. तो अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो you'll revise them. If you do not know it, you'll get to know them. ठीक है. देन देर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स दैट आर स्पेसिफिकली आस्क्ड. ये पर्टिकुलर चीज़ किससे रिलेटेड है, ये किसने लॉन्च किया, ये किसके अंडर आता है, किसके रेगुलेशंस में आता है. सो दीज फैक्चुअल स्टफ एक तो आप अपने स्टैटिक से जो कवर करोगे वो करोगे ही, उसमें उसके बाद करंट और स्टैटिक के लिंकेज से जितना भी कवर हो सकता है वो पूरा मैं इस प्लेलिस्ट में करा दूंगा, इस पर्टिकुलर लेक्चर में करा दूंगा. ओके, that is it. That is what I wanted to say. Make sure that you are taking as many notes as possible. This is a highlighted PDF, this is a value added PDF, and it will be given to you on the Understand UPSC Telegram channel. Clear? बात समझ में आ गई? चलिए, let us begin with the lecture. Welcome you to Understand UPSC. So in this particular lecture, the lecture number 1, I'll try to cover these initial 6 topics: growth and development, fiscal policy, labor, banking and monetary policy, payment systems and external sector, comprising of nearly 46 pages. So this is nearly half of the, more than half a bit, at least 50% of the PT 365 of economy will be done in this particular lecture. I'll record it for 2 hours. 2 घंटे में जितना भी हो गया उतना खत्म करेंगे. ओके, मार्क PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ तक तो मिल ही जाएगी, इन 6 पॉइंट्स तक, इन 6 एरियाज तक. ओके, चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ रिगार्डिंग GDP एस्टिमेशन इन इंडिया. सो द न्यूज़ इज सिंपल. हर बार ये न्यूज़ आती है, बहुत सिंपल सी बेसिक न्यूज़ है कि इंडिया रिकॉर्डेड द रियल GDP ग्रोथ. रियल GDP ग्रोथ कितना है इंडिया का? 7.8%. कब? अप्रैल से जून के पीरियड में, राइट? मतलब 2023-24 के पहले क्वार्टर में, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24, the real GDP growth of India was 7.8%. Now I wanted to understand a few things. This is the latest update given by NSO. So this is the revised update. तो जो ये दिया है ये पुराना है. Though UPSC doesn't ask these data, but still पुरानी जानकारी क्यों चाहिए? तो NSO ने अपने डेटा को रिवाइज किया है. तो पहले क्वार्टर में जो इंडिया ग्रो किया वो 8.2% से किया, सेकंड क्वार्टर में 8.1% से, और अभी जो थर्ड क्वार्टर दिसंबर में फिनिश हुआ है उसमें इंडिया ग्रू बाई 8.4%. राइट नाउ, there is a term given here which is important for exam, which is real GDP growth. What is the meaning of real GDP growth? See, real GDP growth means nominal GDP adjusted for inflation and deflation. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉमिनल GDP और एक होता है रियल GDP. नॉमिनल GDP आपका लिया जाता है बेस ईयर पे, ठीक है? नॉमिनल GDP आपका कहाँ लिया जाता है कि एक पर्टिकुलर बेस ईयर में क्या GDP था, कितना प्रोडक्शन था, उसका फाइनल वैल्यू क्या था. नाउ उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होती है. तो उस इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इंक्रीज ना हो जाए. मान लीजिए एक पेंसिल प्रोड्यूस हुई बेस ईयर 2011 में एंड इट वाज प्राइस एट 10 रुपीज़. 2023 में भी अगर एक ही पेंसिल प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इसका प्राइस अब 15 रुपये है, और इन्फ्लेशन जो है वो 5% मान लीजिए या 50% के रेट पे इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पूरा ग्रोथ है दिस हैज़ ओनली बीन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो एक्चुअल ग्रोथ कुछ नहीं हुआ है, रियल GDP ग्रोथ कुछ नहीं हुआ है, 10 का 10 ही बचा है. जो ग्रोथ हुआ था वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ था. सो दैट इज वाई वी डू दिस कि रियल GDP ग्रोथ में हम नॉमिनल GDP को एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे, तब हमें समझ में आ जाता है. तो रियल GDP ग्रोथ का बेस ईयर क्या लेते हैं हम अभी के लिए? 2011-2012 फाइनेंशियल ईयर 2011-12. ये दिखाता है ग्रोथ इन क्वांटिटी ओनली, है ना? क्योंकि नॉमिनल GDP में क्या आ जाएगा? क्वांटिटी प्लस इन्फ्लेशन, क्वांटिटी प्लस वैल्यू. इसमें क्या आ जाएगा कि नहीं, अगर क्वांटिटी आपकी ग्रो करी होगी, इफ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन वुड हैव इंक्रीज्ड ओनली देन द रियल GDP विल इंक्रीज. नॉमिनल GDP शोज बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड प्राइसेस. दिस विल बी क्वांटिटी. ठीक है, क्लियर हो गई बात? सो हियर वी गो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल GDP एंड नॉमिनल GDP. ओके, प्रेजेंटली द मॉस्पी कैलकुलेट्स. अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक मेजर मिस्टेक करी है PT 365 में. आई विल बी टेलिंग यू लॉट ऑफ एरर्स दैट दे हैव मेड एंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गैप्स दैट नीड टू बी फिल्ड.
So for example, here they have made an error. Mosby calculates quarterly GVA at constant prices, which is known as real GDP. ऐसा बोल रहे हैं ये, and current prices पे nominal GDP. अब ये बात इनकी सही है कि जो constant prices पे calculate होता है वो real GDP होता है, और जो current prices पे होता है वो nominal GDP होता है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, इसीलिए हम जब नॉमिनल जीडीपी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तो रियल जीडीपी आ जाता है. ये मैंने क्लियर कर दिया आपको. कांस्टेंट प्राइसेस का बेस है, मैंने क्लियर कर दिया आपको. दिक्कत क्या है कि ये जो ये वाली बात बोल रहे हैं, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी. जब आप कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड से, तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं. रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. नाउ रियल जीडीपी इज नॉट इक्वल टू जीवीए, एज इन्होंने बताया है. रियल जीडीपी इज नॉट इक्वल टू जीवीए. देखो डिफरेंस होता है. लेट मी शो यू. ये एनएसओ का लेटेस्ट डेटा है, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं. रियल जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया, वॉज 8.2%. जीडीपी ग्रोथ है, ओके, जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज. वेर एज जीवीए में दिस वॉज, जीवीए में भी 8.2 था. नेक्स्ट क्वार्टर में जब वो 8.1 हुआ तो जीवीए में 7.7 हुआ, और अभी लास्ट क्वार्टर में ये और ज़्यादा गैप बढ़ गया. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवीए का मतलब होता है जीडीपी माइनस इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आपने एक पेंसिल प्रोड्यूस की, ठीक है, एक पेंसिल आपने प्रोड्यूस की, सपोज करिए वो 10 रुपए की है. अब गवर्नमेंट ने वो 10 रुपए, अब ये फाइनल प्राइस है इसका 10 रुपए, राइट. लेकिन इस 10 रुपए में अगर टैक्सेस भी इंक्लूडेड है और सब्सिडीज भी इंक्लूडेड है, मान लीजिए टैक्स दिया था आपने 2 रुपए इसमें और आपको सब्सिडी मिली थी 1 रुपए की, तो अब जीवीए एक्चुअल में जो आपने वैल्यू ऐड किया है, जो लकड़ी को आपने पेंसिल में कन्वर्ट किया है, वो कितना है? 10 - 2 + 1 विच मीन्स 9. तो जीवीए आपका यहाँ पे 9 है. अब आपको एक बात समझ में आएगी कि इनडायरेक्ट टैक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा गैप हो जाएगा जीवीए और जीडीपी के बीच में. एंड बिकॉज इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर में, हर क्वार्टर में रहता ये गैप जो है आपका वो इंक्रीज होता जा रहा है. ये क्लैरिटी आपको चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ही चाहिए. बात समझ में आई? जीवीए का मतलब जीडीपी माइनस indirect taxes and subsidies. Now because indirect taxes surge has been huge and subsidies have been lowered, subsidy इंडिया में lower की गई है, especially because of fertilizer subsidy. Thus we see a huge difference between GDP and GVA growth rates in the quarter 3. तो ये वाली गलती मत करिएगा. there is a difference between GDP and GVA. GVA speaks about the value added to a particular product, whereas GDP is the final value of that product. ठीक है, आपने कितना अपनी तरफ से वैल्यू ऐड किया, वो जीवी है, ग्रोस वैल्यू एडेड, एंड जीडीपी इज द फाइनल मार्केट वैल्यू. तो उसके बीच में टैक्सेस और सब्सिडीज आ जाते हैं. वो टैक्सेस और सब्सिडीज को रिमूव कर दोगे तो आपका जीवीए निकल के आ जाएगा. ठीक है. नाउ देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर. जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी. इससे आपको क्या पता चल जाएगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, मतलब इन्फ्लेशन कितना हुआ है. तो जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेट कर रहे हैं हम, है ना. अक्सर क्या होता है कि किसी भी देश में इन्फ्लेशन रहता है थोड़ा सा भी, तो नॉमिनल जीडीपी को जब रियल जीडीपी से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा है, बड़ा है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है. तो डिफ्लेटर क्यों बोला गया है इसको? कि हमने नॉमिनल जीडीपी को इतने से डिफ्लेट करके रियल जीडीपी निकालना है. दिस इज द जीडीपी डिफ्लेटर. डिफ्लेट कर दिया उसको. ओके. It reveals the increase in GDP that has happened on the account of higher prices rather than increase in output. तो output increase ना हो के अगर price increase हो रहा है तो वो कैसे पता चलेगा आपको? You'll come to know about it by GDP deflator. Okay, so there are 3 approaches to GDP calculation, not important for prelims, but just to understand: production approach, income approach, expenditure approach. इन पे ही डेटा प्रोसेसिंग करके अलग अलग तरीके से इनको कलेक्शन करके प्रोसेस करके फाइनल आपका जीडीपी निकाला जाता है. प्रोडक्शन में आप नाम से समझ में आ जाएगा कितना प्रोड्यूस हो रहा है. इनकम में टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो 4-5 होते हैं उनको कितनी इनकम रही है, और एक्सपेंडिचर में कितना फाइनल एक्सपेंडिचर आया है, बीट बाय द कंज्यूमर साइड, बाय द गवर्नमेंट साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ देयर वर सम चेंजेस दैट वर इंक्लूडेड बाय द जीडीपी कैलकुलेशन इन 2014-15 बाय सीएसओ. तो सीएसओ ने न्यू सीरीज निकाली थी और इसी के तहत जो बेस ईयर था वो 2011-12 किया गया था. उससे पहले जो बेस ईयर था वो 2004-5 था, फिर हमने बदल के 2011-12 किया. और इसमें जो ये लेटेस्ट अब इसमें चेंजेस किए गए थे, इसमें इंटरनेशनल जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो, वो भी इंक्लूड की गई हैं. तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट बन के आ सकता है, क्योंकि ये दैट लेटेस्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस वर इंक्लूडेड इन द चेंजेस मेड इन जीडीपी कैलकुलेशन, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे फैक्चुअल एरर करेगा यूपीएससी, 2011-12 की जगह 13-14 दे देगा, 21-22 दे देगा, ऐसा कुछ करेगा. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेस ईयर क्या है. नाउ
ये मीन्स ओरिएंटेड चीज़ है। वाई जीडीपी इज नॉट अ गुड मार्कर ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जीडीपी में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी इंक्लूड करते हैं जो ज़रूरत नहीं है, या ऐसी एक्सक्लूड कर देते हैं जिनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीडीपी में हम एनवायरमेंट नहीं कैलकुलेट करते हैं, फैमिली बॉन्डिंग नहीं कैलकुलेट करते हैं, राइट। फिर क्राइम रेट कितना है किसी कंट्री में, पॉल्यूशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, ये सब चीज़ें, क्वालिटी हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, वी आर जस्ट फोकस्ड अपॉन क्वांटिटी। तो इसलिए जीडीपी इज नेवर अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। नाउ माय पॉइंट इज हम जीडीपी को डेवलपमेंट की तरह देखते भी नहीं है। हम क्या बोलते हैं, जीडीपी रिप्रेजेंट्स ग्रोथ नंबर्स। तो जीडीपी जो है वो सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, बाकी इंडेक्सेस हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे ये एक बेसिक सा मीन्स के लिए चीज़ है, इसके लिए आपकी जरूरत नहीं है पढ़ने की। नाउ द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है। तो पिछले 2005-6 के बाद से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया किस तरीके से चेंज हुई है, उसके ऊपर एक पेपर आया है, डिस्कशन पेपर आया है बाय नीति आयोग, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको, जीडीपी जीवी में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर। चलिए एमडीपी देख लेते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहला ऑब्वियसली पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में डिक्लाइन हुआ है ना। पहले हमारे यहाँ पे 29.17% लोग गरीब थे, अभी 11.23% रह गए हैं। सो द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो मतलब कितने इंडिविजुअल पुअर हैं वो डिक्रीज हुआ है। फिर हमने नियरली 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाले इन द लास्ट 9 ईयर्स, 25 करोड़ पीपल नियरली। इंटेंसिटी इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक गरीब कितना गरीब है ना। एक गरीब तो वो हो सकता है जो बेसिक जो अफोर्डेबिलिटी की रेंज है उसके जस्ट नीचे है, और एक गरीब ऐसा हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो गरीब है वो कितना गरीब है, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो डिक्लाइंड। फिर ये बेसिकली कुछ नहीं है, थोड़ा मतलब ऐसे दो गवर्नमेंट्स को हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे कंपेयर किया है लगभग। द पेस ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो 2015-16 से 19-21 में ज़्यादा तेज़ी से हुई, उसके पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके पिछले डेकेड से, सॉरी, अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब रीसेंट के जो 5-6 साल थे उसमें बहुत तेज़ी से जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो का डिक्लाइन है वो ग्रो कर रहा है ना। मतलब ज़्यादा पॉवर्टी हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन है वो कहाँ देखने को मिला है हमें, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप कैसे याद रखेंगे, बेसिकली इसमें वही सब स्टेट्स है जिनको बीमारू स्टेट्स बोलते थे, BIMARU, बीमारू स्टेट्स, राइट। लेकिन वो सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस क्या है, यूपी बिहार एमपी ओडिशा एंड राजस्थान। मुझे लगता है पहले 3 याद रख लो, बहुत है, यूपी बिहार एमपी। यूपी में सबसे ज़्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, देन बिहार एंड देन मध्य प्रदेश, राइट। देयर आर 12 इंडिकेटर्स इसमें नीति आयोग वाले इंडेक्स में। जो ग्लोबल आता है उसमें 10 इंडेक्स होते हैं, ठीक है। देखो ओरिजिनली 10 इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल एमपीआई में, लेकिन नीति आयोग ने अपने वाले में 2 और ऐड किए हैं जिनका नाम है मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। तो 12 के 12 इंडिकेटर्स पे हमने रिडक्शन देखा है पॉवर्टी का, राइट। सबसे ज़्यादा अभी भी डेप्रीवेशन कहाँ बचती है, कुकिंग फ्यूल में और हाउसिंग में। कुकिंग फ्यूल में कितनी, 43.9% और हाउसिंग में 41.3%। प्लीज़ इसी चीज़ से पढ़िएगा, इसी पीडीएफ से पढ़िएगा, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, लेक्चर के साथ साथ इसको अपलोड कर दूंगा मैं, तो इसी से पढ़िए पूरा का पूरा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देन द चाइल्ड, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे सबसे कम डेप्रीवेशन है। ये सब क्या है, ये इंडिकेटर हैं, अभी 12 के 12 इंडिकेटर दिखाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें किस इंडिकेटर पे है, कुकिंग फ्यूल पे। वहाँ अभी भी नियरली 44% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, या फिर मल्टी डायमेंशनली पुअर है अगर मैं ये बोलूँ तो। देन सबसे कम सबसे जो लोवेस्ट पैरामीटर है वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी। यहाँ पे सिर्फ 2.06%, मतलब नियरली 2% पीपल आर यूनिडायमेंशनली पुअर इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी में 3.27% और बैंक अकाउंट में 3.69%। तो ये जनधन की वजह से, ये सौभाग्य स्कीम की वजह से, ये ICDS वगैरह की वजह से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से चलते हुए हमने देखा कि इसमें इमेंस डिक्लाइन हुआ है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हाउसिंग में भी बहुत तगड़ा डिक्लाइन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, दैट हैज़ बीन रियली सक्सीडिंग इन प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू पीपल। उसका टारगेट शायद 3 करोड़ वगैरह लोगों का है, तो इट हैज़ बीन रियली सक्सीडिंग, इट हैज़ बीन रियली डूइंग गुड। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आप बहुत अच्छा पॉइंट देखेंगे आने वाले टाइम पे, बट अभी के लिए ये इशू है। सिमिलरली कुकिंग फ्यूल में 2 उज्ज्वला योजना का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो डेटा शायद उस लेवल पे नहीं आया होगा नीति आयोग के पास कि इसमें इंक्लूड किया जाए। तो आप देखो कि अगले आने वाले टाइम पे इसमें भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। देन नेशनल एमपीआई पहला है, ये पहली बार ये 2021 में रिलीज हुआ था, है ना। फिर उसके बाद अभी शायद ये थर्ड होगा प्रोबेबली। फिर गवर्नमेंट के ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म के चलते नीति आयोग को नोडल एजेंसी बनाया गया था एमपीआई कैलकुलेट करने के लिए। आपको पता ही है किस मेथोडोलॉजी से करते हैं हम, एल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्या मतलब है एल्कायर-फोर्स्टर मेथड का? ये इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, द ब्रेथ एंड द डेप्थ, दोनों को कैलकुलेट करता है ना, कितने लोग पुअर हैं और जो पुअर है वो कितना पुअर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसमें कैलकुलेट करी जाती हैं, वो मैं आपको बता ही रहा था अभी। फिर किसको हम पुअर मानते हैं? जिसका डेप्रीवेशन स्कोर इक्वल या ज्यादा हो 33% से, 33.33, वन थर्ड से, है ना। टोटल आप इन पैरामीटर्स पे स्कोर करोगे, अगर वन थर्ड से आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है तो आप पुअर माने जाओगे। फिर ये मैंने बताया दिया आपको, हेड काउंट रेशियो मतलब कितने लोग पुअर हैं, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी मतलब जो गरीब है वो कितना गरीब है, हाउ पुअर आर द पुअर। डन। चलिए नेशनल एम्पायर के 12 इंडिकेटर्स देखते हैं। देखिए मेजरली अगर डायमेंशन पूछे तो 3 है, याद रखिएगा, डायमेंशंस पूछे तो 3, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और पैरामीटर्स पूछे, इंडिकेटर्स पूछे तो 12 हैं। हेल्थ के अंडर 2 हैं, न्यूट्रिशन, सॉरी हेल्थ के अंदर 3 है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ। एजुकेशन के अंदर 2 हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, हाँ, तो 3 और 2 5 और 7 12। हेल्थ में कितने हो गए? 3। एजुकेशन में कितने हो गए? 2। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 7। कुकिंग फ्यूल ये हमने देखा ही अभी। देन सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। ओके, ये अपने लिए नया है बैंक अकाउंट, और ये अपने लिए नया है मैटरनल हेल्थ। ठीक है, देखो इसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है। वन थर्ड अगर हेल्थ, टोटल तीनों डायमेंशंस को वन थर्ड दे रखा है, उसमें अब हेल्थ में डिवाइड किया हमने, तो हमें हेल्थ के अंदर 3 चीजें इंक्लूड करनी है। तो वैसे तो सबका 1/9 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अलग अलग वेटेज दिया गया है। तो न्यूट्रिशन को 1/6, फिर जो बचा उसमें से, मतलब 1/6 बचा, अब उसमें से चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी को 1/12 और मैटरनल हेल्थ को 1/12। तो इनको अगर सबको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा? 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ये हो जाएगा आपका 2/12, कितना हो गया? 4/12, मतलब 1/3। बात समझ में आई? ऐसे आप बाकी का भी करके देख सकते हो। तो ऐसे है ना, ये सबका जब ये 12 के 12 इंडिकेटर्स को आप ऐड करोगे तो आखिर में 1 आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट्स और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर यूपीएससी ट्रैप करेगा तो यही करेगा, स्पेशली पर कैपिटा इनकम पे ट्रैप करेगा, है ना। लिटरेसी रेट भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, एजुकेशन में क्या है? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, कितने साल तक आप स्कूल में गए और कितनी बार, कितना अटेंडेंस रही आपकी। ठीक है, बात समझ में आई? तो पर कैपिटा इनकम नहीं, और लिटरेसी रेट नहीं, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं। रेदर इट इज अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉट अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो इंडिया जैसी कंट्रीज में वैसे भी थोड़ा लो है ही। फिर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी अलॉन्ग विद ओपीएचआई। ओपीएचआई क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड हंगर डेवलपमेंट इनिशिएटिव। 2010 से ये लोग निकाल रहे हैं। इसमें 10 इंडिकेटर हैं, 110 कंट्रीज को ये लोग रैंक करते हैं। ठीक है, इसमें लेटेस्ट क्या था वो इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आपको ये इसका बेसिक पता होना चाहिए। कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई। कब से रिलीज कर रहा है? 2010 से। कितने इंडिकेटर्स हैं? 10। कितनी कंट्रीज को करता है? 110। ठीक है, नीति आयोग वाले में कितने इंडिकेटर्स हैं? 12। क्लियर हो गया? चलिए, डीबीटी कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट ने 2.25 लाख करोड़, 2.73 लाख करोड़ रुपीस बचाए हैं डीबीटी करके। डीबीटी का मतलब क्या होता है? जब आपको डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर किया जाए, है ना, डायरेक्ट आपको कैश दिया जाए, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे डाले जाए, डायरेक्ट आपको पीडीएस दिया जाए, तो जब डायरेक्टली आपको चीजें करी जाए, है ना, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू आपको डायरेक्ट हेल्प करी जाए, राइट। तो कैश ट्रांसफर जैसे एमजी नरेगा में होता है, इन काइंड ट्रांसफर जैसे पीडीएस में होता है, और अदर ट्रांसफर जैसे आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, आईसीडीएस में आप देखते हो ना, वैक्सीन दे दी, डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 3 तरीके से, कैश देना, काइंड में कुछ चीज देना, या फिर बाकी जो अदर ट्रांसफर्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। बाकी सब मेंस के बारे में इतना आपको इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है नहीं। नोडल एजेंसी इंडिया में डीबीटी मिशन के लिए क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पीजी। ये है आपका नोडल एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर डीबीटी का पूरा मिशन। आधार डीबीटी स्कीम्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एनकरेज हम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आधार इज नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम्स, दो द गवर्नमेंट ऑब्वियसली विल एनकरेज पीपल टू लिंक देमसेल्व्स टू द आधार। की एनेबलर्स क्या है डीबीटी के? जैम ट्रिनिटी, है ना, बैंकिंग, ये तो ठीक है, दिस इज कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड, तो एकदम ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप करते हैं। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस बार बजट में आया था, मैंने पूरा बजट पढ़ाया था आपको, नहीं पढ़ा तो वही पढ़ लो एक बार, दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेक्चर, राइट। 2 घंटे लगेंगे, बैठ के कवर कर लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा बजट क्लियर हो जाएगा। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो 2 करोड़ लोगों को और दी जाएगी।
है ना। पहले बोला था कि 2 करोड़ लोगों को दी जाएगी, अब लेटेस्ट बजट में इसको 1 करोड़ और ऐड कर दिया, तो अभी नंबर 3 करोड़ हो गया है, राइट। और स्कीम क्या है, लखपति दीदी स्कीम। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपको याद रखनी है। लखपति दीदी स्कीम के अंतर्गत जो भी टारगेट है वो है 1 लाख पर एनम। 1 लाख पर एनम, एक साल में 1 लाख रुपए कमाना है, महीने में नहीं, ये याद रखिएगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि इसमें ड्रोन वगैरह यूज हो रहे हैं तो लखपति एक महीने में बना देंगे, नहीं। लखपति दीदी 1 लाख एक साल में, राइट। पहली बात ये समझ लो कि अब ये बजट में आया था तो इसका टारगेट बढ़ाया गया। पहले 2 करोड़ वुमेन को लखपति दीदी स्कीम के अंतर्गत बढ़ाना था, हमें स्किल डेवलपमेंट करनी थी, माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए प्रेरित करना था। अभी उसको 1 करोड़ और इंक्रीज कर दिया तो वो 3 करोड़ हो गया। ये जो स्कीम है 2023 में ही आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ध्यान से, विमेन चाइल्ड नहीं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है जो कर रही है। 1 लाख पर एनम, ठीक है। फिर विमेन लेड अप्रोच है, ये सारे स्किल्स सिखाई जाती हैं विमेन को, इंक्लूडिंग इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स। तो इसलिए कहीं कहीं इस स्कीम को ड्रोन दीदी का नाम भी दे दिया गया था, राइट। मोदी जी गए थे इन पूरी कॉन्ग्रीगेशन को एड्रेस करने, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। फिर लेट्स मूव अहेड अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं नेचर में, ठीक है। 1.2 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप है इंडिया में अभी ऑलरेडी, और इसमें से 88% ऑल विमेन हैं, और इस नंबर को और बढ़ाना चाह रही है गवर्नमेंट। तो इंडिया में एसएचजीज इज डूइंग अ रियली गुड जॉब, ठीक है। तो ये फैक्ट कुछ आप याद रखिएगा, मेंस के लिए भी काम आएंगे वैसे तो, बट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। फिर ये स्टेट रिलेटेड स्कीम्स हैं, दिस इज जस्ट फॉर मेंस, ये मेंस के लिए पता होना चाहिए आपको ताकि आप बेस्ट केसेस कोट कर सको। नाउ 2023 में एक स्टेटमेंट आया था, वो एज इट इज एसएचजी का था। 2023 प्रीलिम्स के पेपर में, ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, करेक्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। तो सारे पूरा का पूरा ग्रुप रिस्पांसिबिलिटी लेता है अगर कोई भी एक इंडिविजुअल मेंबर लोन उठा रहा है तो ये स्टेटमेंट सही था 2023 के पेपर का, ओके। इसी 2023 के पेपर में एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि सेबी ने स्टार्ट किया था एसएचजीज के कॉन्सेप्ट को, नो, इट वाज लॉन्च्ड बाय नथिंग बट नाबार्ड इन 1992, राइट। एंड देयर वाज अ थर्ड स्टेटमेंट वेयर वाई इट वाज सेड कि कौन इसकी फाइनेंसिंग वगैरह करता है, राइट। तो सबसे ज्यादा एनबीएफसी एमएफआईज followed by banks are the largest provider of microcredits among other regulated entities। तो सबसे ज्यादा कौन करते हैं, एनबीएफसी एमएफआई, एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फिर फॉलोड बाय बैंक, सेकंड नंबर पे बैंक, वो इसके सबसे ज्यादा पैसा देते हैं अंडर दीज पर्टिकुलर थिंग्स। क्या मेजर इनिशिएटिव्स है हमारे पास एसएचजी को प्रमोट करने के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब ये सब देखो, ये सारे जितने भी हैं, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, महिला किसान का सशक्तिकरण करेंगे, ग्राम में कौशल योजना चलाएंगे, कौशल्य देंगे उनको, विमेन इनिशिएटिव चलाएंगे। फिर ये ड्रोन टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वही वाला है जो मैं लखपति दीदी बात कर रहा था, तो ये मैंने अभी आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अंत्योदय योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये जो तीनों स्कीम्स हैं ये वैसे भी इसी के अंडर आती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आ जाएगा आपको रूरल डेवलपमेंट ही। तो मैक्सिमम केसेस में एसएचजी रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देख रही है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। फिर एक एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट है, अगेन वही एसएचजी के रिलेटेड चीज़ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा। ये क्या है, एक सेविंग्स लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है जो नाबार्ड ने लॉन्च किया था 1992 में। नाबार्ड ने लॉन्च किया था 1992 में, याद रखना है, नाबार्ड ने, ओके। फिर क्रेडिट एट सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए और थोड़े कम रेट पे मिल जाए। कंपोनेंट इसके वही, ब्रांच मैनेजर को ट्रेन करो, बैंक सखी बनाओ, कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेनिज्म लगाओ, क्रेडिट लिंकेज करो एसएचजीज का। ये सब चीज़ें क्या हैं, दीज आर मेंस। अगर प्रीलिम्स में आता है तो लगभग ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, अनटिल अनलेस कुछ बहुत ही एक्सट्रीम दे रखा है तो, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। फिर ये फेजेस वगैरह हैं इसके, आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अलाउ किया था बैंक को सबसे पहले कि आप लेंड कर सकते हो फ्रॉम फिर इंडिविजुअल्स की जगह हमने ग्रुप को टारगेट करना शुरू किया फेज 2 में, और फेज 3 में डेडिकेटेड आर्किटेक्चर और प्रोफेशनल मैन पावर इंक्लूड करी गई, उसका सपोर्ट दिया गया इन फेज 3। मुझे लगता है कि ये अगेन इंपॉर्टेंट है, बट ताकि आप फेयर में ना रहो कि छूट गया, इसलिए कवर करा दिया। देन इंडिया में माइक्रो फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है बाय द नेम ऑफ माइक्रो मैटर्स, मैक्रो व्यू, माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू, माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड। तो कौन दे रहा है, द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। बहुत सिंपल है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क क्या है, एक एसोसिएशन है एनबीएफसी कंपनीज की जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। बहुत सारे तरीके के एनबीएफसीज होते हैं ना, उसमें से एक क्या होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका एसोसिएशन है। उनका एसोसिएशन क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क, ठीक।
इसकी वही जो की रिपोर्ट है मैं भी बता रहा था आपको कि एनबीएफसी फिर बैंक लार्जेस्ट प्रोवाइडर है माइक्रो क्रेडिट के, और एमएफआईज का मतलब इनका जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनका जो ग्रोस एनपीए है वो डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहा है। तो ये दो तीन चीज़ें बस आपको इसमें याद रखनी है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ओके, सो आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया बाय द नेम ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। इसमें पूरा नाम तो खैर ये काफ़ी बड़ा है, बट स्टेट फाइनेंसेस देखते ही मार्क कर लेना। आरबीआई ने रिलीज किया, हर साल लगभग रिलीज करता है। हाँ, एनुअल रिपोर्ट है, हर साल रिलीज करता है। इस बार की थीम क्या है रिपोर्ट की? रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी इंडियन स्टेट्स के बारे में होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ बातें लिखी होती हैं, बट मेजरली इट इज अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट्स की क्या फिस्कल कैपेसिटी है, कैसा चल रहा है उनका। नाउ तो ये कुछ कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6%। नेक्स्ट पेज पे इसके रिगार्डिंग कुछ ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके प्रीलिम्स के लिए, और इसमें कुछ कुछ एरर्स भी हैं जो आप सॉर्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जितना मैं मार्क करके दे रहा हूँ उतना ही पढ़ना, ठीक है। कैपिटल आउटले टोटल 42.6% रहेगा। फिर डेट टू जीडीपी रेशो स्टेट्स का डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 31% टू 27.5%। यही वो डेट टू जीडीपी रेशो है जो एनके सिंह पैनल ने बोला था कि आपको 20% पे लेके आना है, बट बिकॉज ऑफ कोविड हम नहीं ले पाए। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, दैट इट इज अगेन सीइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 31% टू 27.5%, एंड द अल्टीमेट गोल विल बी टू गो टू 20% एज सजेस्टेड बाय द एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एनके सिंह पैनल, एनके सिंह कमिटी, ठीक है। फिर स्टेट का कंसोलिडेटेड ग्रोस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो भी कम हुआ है। पहले 4.1% था, अभी 2.8% है। इसका मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो रहा है। तो यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना डेफिसिट फाइनेंस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या वो उस रेट से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हाँ, वो अगर कम हो रहा है, ये रेशो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना। ये बहुत बेसिक सा मैथ का हर जगह काम आती है ये वाली चीज़। मान लो ऊपर आपका ग्रोस फिस्कल डेफिसिट है, नीचे आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और ये रेशो डिक्लाइन कर रहा है, तो कब डिक्लाइन करेगा? तब ये डिक्लाइन करेगा और ये इंक्रीज होगा। तो ये डिक्लाइन कर रहा है फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्लियर। फिर टैक्स बुओयेंसी इंडिया में बढ़ रही है जीएसटी की वजह से। बहुत लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, तो टैक्स बुओयेंसी बढ़ रही है। टैक्स बुओयेंसी क्या होती है? आपका टैक्स कितना बढ़ेगा नेशनल इनकम के चेंज पे। देखो, अगर जीडीपी में चेंज हुआ तो टैक्स के रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है। मान लो जीडीपी ग्रो किया 10% से और टैक्स जो है वो ग्रो किया सिर्फ 5% से, तो इसका मतलब क्या है कि टैक्स बहुत ज्यादा ब्योएंट नहीं है। जीडीपी ग्रो करने के बावजूद भी टैक्स ग्रो नहीं कर रहा है। अगर ये 1 है ना, 1 सिग्निफाइज कि टैक्स रेवेन्यू ग्रो एट अ फास्टर रेट देन, मतलब अगर मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा तेजी से ग्रो किए हैं देन नेशनल इनकम। भाई मैं आपको समझा रहा था, वही रेशो का फंडा है पूरा, राइट। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट पे टैक्स रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली तेजी से बढ़ रहा है, और इंडिया में ग्रेटर देन 1 चल रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग, राइट। फिर एनके सिंह कमेटी जिसका मैं बता रहा था अभी, इसने क्या बताया कि भाई डेट टू जीडीपी रेशो कंबाइंड सेंटर और स्टेट का कितना होना चाहिए? 60%, जिसमें सेंटर का 40 और स्टेट का 20। करंटली सेंटर का अराउंड 55% है, लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, और स्टेट्स का अराउंड 25% है। जो हम यहाँ ये पढ़ रहे थे ना, स्टेट्स का अराउंड 27.5%। देखो ये मार्च 2023 में था, अभी मार्च 2024 चल रहा है, तो ये फर्दर डिक्लाइन होकर 25% पे आया है, राइट। तो दोनों का मिला के लगभग लगभग आपका 80-81% के आसपास चल रहा है। सो द जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो इज नियरली 80%। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आईएमएफ ने वार्न किया था इंडिया को कि तुम्हारा जो जनरल गवर्नमेंट डेट है वो एक्सीड कर सकता है 100% से इन द मीडियम टर्म। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऑलरेडी ये 80% है और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, करेक्ट। एक टाइम पे दिस वेंट हायर देन 90 कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली, और अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। सो दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ गुड थिंग। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी बताया गया है इसमें। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ इन 16 स्टेट्स अंडर द स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। As per Union Budget 23-24, there was a special assistance that had to be given to states for capital investment. 2023-24 जो पिछला बजट आया था उसमें बोला था कि स्पेशल असिस्टेंस देंगे, कितने का? 56,000 करोड़ का, ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। तो गवर्नमेंट देती है स्टेट्स को पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। मैंने बजट वगैरह में पढ़ाई ये चीज़ें।
नाउ जो ये असिस्टेंस होता है 50 ईयर पे होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन होता है ये, और इसके अंदर 1.3 लाख करोड़ तक दिए जा सकते हैं स्टेट्स को। तो उसमें से 56,000 करोड़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे दिए, तो दिस इज नियरली हाफ, हाफ से ज़्यादा ही है, नहीं हाफ, हाँ दिस इज नियरली हाफ, 65 पे हाफ हो जाता, 56 दे दिया, तो नियरली हाफ तो कर ही दिया है। फिर ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 मतलब जनरल एलोकेशन, जो सबको मिलेगा ही 1 लाख करोड़ का, ये जो 1.3 लाख करोड़ है इसमें से 1 लाख करोड़ जो है वो जनरल एलोकेशन है, कि ये 1 लाख करोड़ तो हम जनरली बांट देंगे, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। जो बाकी का 0.3 लाख करोड़ है वो सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो आपको तो मिलेगा। क्या मतलब है इसका, कि मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे मान लो ये वाला जो लेक्चर है सबको मिलेगा, लेकिन इस लेक्चर की पीडीएफ उसी इंसान को मिलेगी जो मेहनत करके रोज के 10 घंटे लगाएगा, है ना। तो सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे, है ना। अगर आप ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप कर रहे हो, अर्बन प्लानिंग में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर कर रहे हो, पुलिस पर्सनल की हाउसिंग का ध्यान रख रहे हो, यूनिटी मॉल्स डेवलप कर रहे हो, एडोलसेंट्स के लिए लाइब्रेरीज बना रहे हो, या फिर वेंडर्स वगैरह को जो रिलीज है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से वो टाइम से कर रहे हो, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, डोंट वरी अबाउट इट, याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि टोटल 8 पार्ट है, उसमें पार्ट 1 इज द जनरल एलोकेशन, और बाकी ये बस थोड़ा सा मैंने आपको एक बार पढ़ दिया है, अब आप आइडेंटिफाई करने में आपको आसान रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये मैंने मना किया है आपको, ये मत देखना, जिसमें कुछ कुछ एरर्स हैं, जैसे खासकर एक ये वाला एरर है, ये वाला डेटा मेरे को कहीं नहीं मिला नेट पे, सो देयर आर सम एरर्स इन इट्स ओके, यू डोंट नीड टू रीड दीज थिंग्स, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इनफ डेटा हो गया जितना आपसे पूछा जा सकता है, सो इग्नोर करना ये वाली चीज़ को, है ना। देन इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं ताकि आप ना देखो इसको। ओके, कैपिटल आउटले टू जीडीपी रेशियो, द स्टेट्स कैपिटल टू आउटले जीडीपी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। वही कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे हो, तो हमने देखा, मैंने आपको बताया था इसमें भी, बजट वाले लेक्चर में भी, इट हैज़ गॉन टू द हाईएस्ट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर, राइट, सबसे ज़्यादा किसी भी साल में जितना हुआ है, इट हैज़ गॉन टू दैट नंबर। क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे तो सेंटर सपोर्ट टू स्टेट टू इंक्रीज केपेक्स, सेंटर का जो सपोर्ट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेगुलेटेड स्टेट्स बोरिंग अंडर आर्टिकल 293, आर्टिकल 293 पे ऑलरेडी यूपीएससी एक बार पीवाईक्यू पूछ चुका है डायरेक्टली, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम स्टेट्स की बोरिंग को रेगुलेट करेंगे 293 आर्टिकल के अंतर्गत 2023 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करते हुए। तो सेंटर ने क्या कर दिया कि स्टेट्स के लिए जो बोरिंग नॉर्म्स हैं कि स्टेट पैसा उठा रहे हैं उनको टाइटन कर दिया, उनको स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ने बोला है कि जो ऑफ बजट लाइबिलिटीज हैं वो भी अब से स्टेट की नेट बोरोइंग का पार्ट मानी जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। पूरे सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर सबसे ज्यादा फाइनेंस के सेक्टर में कोई चीज न्यूज में रही है तो वो यही रही है। तो ध्यान से सुन लो, समझा देता हूं। देखो, आर्टिकल 293 ये कहता है, आर्टिकल 293 में सेंटर को ये पावर दी गई है कि वो स्टेट की बोरोइंग को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। उसी ताकत के चलते अंडर आर्टिकल 293 द सेंटर हैज बीन गिवन दिस अथॉरिटी एंड पावर दैट इट कैन रेगुलेट द फाइनेंसेस स्पेशली द बोरोइंग पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एज पर दैट पर्टिकुलर पावर, central government has said that off budget liabilities of a particular state will now also be the part of the annual net borrowing of the state। एनुअल नेट बोरिंग सीलिंग जो है कि हमने इतना कैप लगा दिया, आप इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हैं, दैट विल इंक्लूड दोज बोरिंग्स विल नाउ इंक्लूड द ऑफ बजट बोरिंग्स, इससे पहले इंक्लूड नहीं होती थी। ये ऑफ बजट बोरिंग किस बला का नाम है, देखो, डेट टेकन बाय द स्टेट, डेट टेकन बाय स्टेट रन एजेंसीज टू फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं ऑफ बजट लायबिलिटी। ये किसकी लायबिलिटी बनती है, ये लायबिलिटी है एजेंसी की। दस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट्स बुक्स, लेकिन अल्टीमेटली पे किसको करना है, अल्टीमेटली इट हैज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली अपने फिजिकल डेफिसिट टारगेट से बचने के लिए, अपने रेवेन्यू कंट्रोल से बचने के लिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट की बोरिंग को कंट्रोल ना कर लिया जाए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट्स ने एक मेथड इजाद किया जिसका नाम है ऑफ बजट बोरिंग। इसका मतलब क्या है कि मैं एक कंपनी खोल दूंगा, मैं गवर्नमेंट के अंतर्गत एक एजेंसी खोल दूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई तू बोरो कर ले, ठीक है। मान लो मेरी कोई, मैं कोई स्टेट का वो हूँ, चीफ मिनिस्टर हूँ, ठीक है। मैं इस यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक कंपनी खोल दूंगा। अब मैं बोलूंगा कि जाके तू बोरिंग कर और आके वापस मेरे प्रोजेक्ट्स में सारा पैसा लगा दे, ठीक है। तो जो लायबिलिटी बनेगी, बोरो किसने किया, बोरो इसने किया ना, लेकिन पे किसको करना है, इसकी तो कोई इनकम है नहीं है, तो सिंपली बोरो कर रही है। पे किसको करना है, पे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा ना।
लेकिन जिस टाइम हम बजट बनाते हैं उस टाइम क्योंकि वो गवर्नमेंट की बुक्स में नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट में, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स में कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन पे गवर्नमेंट को ही करना है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप जो ये ऑफ बजट बोरोइंग के रूट से पैसा लेके आ रहे थे, ये भी आपकी ही बोरोइंग के सीलिंग लिमिट में ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, केरला ने 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उठा लिए थे ऑफ बजट बोरोइंग्स में थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड KSSPL। ये दो एजेंसीज बनाई थी इन लोगों ने। ठीक है, ये दो एजेंसीज बनाई थी केरला ने, और इनके अंतर्गत 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उठा लिया था अंडर ऑफ बजट बोरोइंग्स। क्लियर, बात समझ में आई। इसी को रेगुलेट किया सेंटर ने, और इसी को चलते फिर केरला गवर्नमेंट ने हा उल्ला किया, सेंटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपस में सुलह कर लो, आपस में सुलह होना हो ही नहीं, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया है, और एक दूसरे पे पूरा छींचा लेतर किया जा रहा है, पूरी कीचड़ उछाली जा रही है। इसलिए दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। सो पब्लिक डेट डिनोट्स द लाइबिलिटीज पेएबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट which are contracted against the consolidated fund of India as provided in article 292 of the constitution। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटीज उठाई हैं, कितनी लाइबिलिटीज उसको पे करनी है, इज नॉन एज पब्लिक डेट। दो तरीके का होता है ये, एक इंटरनल डेट होता है, एक एक्सटर्नल डेट होता है। इंटरनल डेट में दो चीजें आती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो जिनको आप मार्केट में आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स और CMB यानी कैश मैनेजमेंट बिल आते हैं। नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो मार्केट ट्रांजेक्शन्स में नहीं इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट टी बिल्स या फिर सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। वहीं पे एक्सटर्नल डेट वो डेट है जो कि हम मल्टीलेटरल एजेंसी से लेते हैं, जैसे कि IDA, IBRD, ADB, आज पढ़ेंगे IBRD वगैरह भी हम। तो ये है आपका एक्सटर्नल डेट। दो तरीके का डेट, इंटरनल और एक्सटर्नल। टोटल जो पब्लिक डेट है गवर्नमेंट के ऊपर, उसका नियरली 95%, 94.6% इज इंटरनल डेट। तो बेसिकली एक्सटर्नल डेट बहुत कम उठाती है गवर्नमेंट, किसी फॉरेन एजेंसी से पैसा उठाती है बहुत कम गवर्नमेंट। ज़्यादातर जो डेट है वो इंटरनल कंट्री वाइज ही हम अपना सॉर्ट कर लेते हैं, अपने इशू को खुद ही निपट लेते हैं, है ना, बाहर अपनी लॉन्ड्री को एयर नहीं करते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। आर्टिकल 4 ऑफ द IMF, आर्टिकल ऑन एग्रीमेंट, बायलेटरल डिस्कशंस करने के लिए है ये। इसी के तहत देखो, जो मैं अभी बोल रहा था ना आपको, IMF ने बोला है कि इंडिया का जो पब्लिक डेट टू GDP रेशो है वो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है ना, बहुत कम इंक्रीज हुआ था और वापस से कम हो गया है। तो इसी की मैं देखो बात कर रहा था, अभी 81% है ना, अब और नीचे आके नियरली 80% पे आ गया है। करेक्ट। इंडियन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, ऐसा IMF ने बोला है। ये मैंने आपको समझाई दिया कि पब्लिक डेट का क्या मतलब होता है। अब देखो, जो टोटल पब्लिक डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो GDP का 57.1% है। राइट, ये हमने देख लिया था मार्च 2023 के एंड में। इसका मैंने लेटेस्ट डेट आपको 55% के आसपास का दे दिया है, जो कि इस महीने के एंड तक आपको दिखेगा। देन गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट का डेट 81% ऑफ GDP 2022-23 में, वही मतलब मार्च एंडिंग 23/23, ये भी कम हो गया, 80% के आसपास आ गया है। 55 सेंटर, 25 स्टेट। तो ये सब मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था यही था। फिर गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेंटर स्टेट तो होती हैं, लेकिन यूटीज विद लेजिस्लेचर भी इंक्लूड होते हैं, ये आपको याद रखना है। यूटीज विद लेजिस्लेचर, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की अथॉरिटी है बोरिंग वगैरह करने की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूटी विद लेजिस्लेचर आपको याद हो कि वो भी, उनका पैसा भी, उनका डेट भी जनरल गवर्नमेंट डेट में इंक्लूड किया जाता है। ये मैंने आपको बताया दिया। इंटरनल डेट जो है वो 94.6% है टोटल पब्लिक डेट का। ओके, फिर हाई पब्लिक डेट से, हाई पब्लिक डेट क्यों होता है? वही, एक तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर ज़्यादा खर्चा कर दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत करे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके। फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बहुत चलाया गवर्नमेंट ने, ये भी फ्री में दे, ये भी फ्री में दे, ये भी फ्री में दे। और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ पब्लिक डेट? फिजिकल रिसोर्सेज लिमिट हो जाएंगे। अगर आप हाई पब्लिक डेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बोरोइंग हाई होगी, कहीं से तो पैसा सोर्स करोगे ना। अगर पब्लिक डेट ले लिया है, अगर डेट ले लिया है तो अब उसको कहीं से तो रीपे करोगे ना। उस रीपे को करने के लिए, वो रीपे करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, वो पैसा आप उठाओगे कहीं से, जहां से आप पैसा उठाओगे अब वो वाला पैसा कहीं और इंक्लूड होएगा ही नहीं, वो वाला पैसा कहीं और लेंड नहीं हो सकता, वो तो आपके पास चला गया। ठीक है, फिर कुछ कुछ पैसा आपको हाई इंटरेस्ट पेमेंट पे भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डेट लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा बैंक्स को कि आपके पास
ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू सोर्स नहीं है, ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू मेथड नहीं है, तो बैंक क्या करेंगे, आपको हाई इंटरेस्ट पे चार्ज करने लगेंगे। लास्टली क्राउडिंग आउट, तो मैंने आपको समझाया था, ये तो इंपॉर्टेंट है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। देखो बेसिकली क्राउडिंग आउट दो तरीके से समझो। पहला क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट से उठा लिया, तो मार्केट में अब कम पैसा बचा है, तो पहली बात तो यही है कि जो पैसा प्राइवेट सेक्टर उठा सकता था वो नहीं उठा पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उठा लिया। दूसरी बात क्या है, इवन जो पैसा मार्केट में बचा भी है, द मनी दैट इज लेफ्ट इन द बैंक्स एंड इन द मार्केट, it is being sold at high interest rate because there is limited amount of money, and because it is being sold or it is being lended at high interest rate, the private agencies will not be able to afford it, and thus they are being crowded out of the economy. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है एक्सटर्नल डेट पे, इसमें बाकी जो दे रखा है वो कुछ ज़्यादा मतलब नहीं आपको पढ़ने का, याद रखना बस, देयर इज अ रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेट गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। ऑफ बजट बोरिंग में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, समझाई दी मैंने। ऑफ बजट बोरिंग रेफर्स टू द बोरिंग्स दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट, बजट में नहीं आती हैं ये, लेकिन बजटरी रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे इनकी रिपेमेंट के लिए ऑब्वियसली, ठीक है तभी। और फिजिकल इंडिकेटर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तो भी अगेन ऑफ बजट बोरिंग इंक्लूड नहीं होगी ऑब्वियसली। तो हाइड करने का चीज़ होती है, एक तरीके से हाइड कर रहे हैं आप, बजट से हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, बजट के बाहर बोरो करके या फिर बजट के बाहर अपनी बोरिंग दिखा के, ठीक है। देन जो ऑफ बजट बोरिंग होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल इंडिकेटर, ऑफ बजट बोरिंग आर टेकन नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली बट बाय एनी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो मैंने केरला वाला एग्जांपल देके आपको समझाई दिया। फिर वही है, क्यों क्यों करते हैं गवर्नमेंट ऐसा, तो एफआरबीएम के टारगेट से बचने के लिए, बोरिंग लिमिट से बचने के लिए, है ना, सेंट्रल ग्रांट्स में डिले ना हो कि भाई तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, अपने रेवेन्यूज कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो हम ग्रांट नहीं देंगे, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये वाला चीज़ करी जाती है, ऑफ बजट बोरिंग जनरली करी जाती है। देन इम्प्लीकेशंस ऑफ हाई ऑफ बजट बोरिंग, अगर हाई ऑफ बजट बोरिंग कर रहे हो तो क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। पहला वही, देयर इज एन हिडन लायबिलिटी, भाई लायबिलिटी तो है ही ना, है ना, ऑस्ट्रिच के पीछे हंटर तो भाग ही रहा है। अब ऑस्ट्रिच भले ही अपना जो सिर है वो ज़मीन में दे दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पीछे खतरा नहीं आ रहा है। तो देयर इज अ हिडन लायबिलिटी दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू इवेंचुअली पे। ओके, आगे बढ़े, लेट्स कम टू करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, द करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंड टू 9.2 बिलियन, मतलब कुछ नहीं है, देखो बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया में अभी 1% ऑफ जीडीपी के आसपास है, एंड लार्जली ये जो है ये कम हुआ है। क्यों हुआ है कम, ये बेसिकली नैरोइंग ऑफ मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट। मर्चेंडाइज मतलब वही जो गुड्स वाली ट्रेड है, उसका जो डेफिसिट है वो नैरो डाउन हुआ है। पहले हम $78 बिलियन पे खड़े थे, अभी हम $61 बिलियन पे खड़े हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ merchandise trade deficit in this particular quarter, and that is why it narrowed down, that is why this particular current account deficit narrowed down. Okay, let us talk about current account deficit। पहली चीज क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि गुड्स और सर्विसेज, दो देश मतलब एक कंट्री वर्ल्ड से क्या ट्रेड और गुड्स में और सर्विसेज में क्या ट्रेड कर रही है वो सबका नाम आना चाहिए, ठीक है। एनी ट्रांजेक्शन इन गुड सर्विसेज एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट इज नथिंग बट अभी, है ना, साथ साथ जो हो रहा है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स जो हो रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट जो हो रहे हैं। तो यार देखो यहाँ से समझते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक विजिबल एक इनविजिबल पोर्शन। विजिबल में क्या आ जाएगा, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इनविजिबल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। विजिबल क्या, गुड्स। इनविजिबल में सबसे पहले क्या आ जाएगी, सर्विसेज। दूसरा इनकम प्रोफाइल, इंटरेस्ट, डिविडेंड। और तीसरा ट्रांसफर मतलब रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट। तो ट्रांसफर पेमेंट्स, बात समझ में आई। ये आपके विजिबल चीज़ें हैं अंडर द करंट अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मतलब वही एफडीआई वगैरह, फिर लोन अगर गवर्नमेंट ने कुछ उठाए, और लास्टली बैंक अकाउंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन्स, और अगर एनआरआई वगैरह कुछ बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैंने वो बहुत सारी आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं इन द बजट वगैरह का लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें से जो भी बढ़ेगा, है ना, जहां भी इंडिया का इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फिर कुछ ग्लोबल फैक्टर होते हैं,
फिर प्राइस वगैरह ऑयल के राइज हो गए, वॉर हो गया तो सप्लाई कम हो गई, तो इन सब चीज़ों से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई इतना इशू है नहीं। तो देख सकते हो आप, है ना। ट्रेड डेफिसिट अगर ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। सर्विस रिसीट हमारी डिक्लाइन हो गई है ना, वही रिसीट डिक्लाइन हो रही है ना, इंपोर्ट जो वो डिक्लाइन हो रहा है। फिर सॉरी सर्विस से जो रिसीट आई है ना, सर्विस हमने जो बाहर दी उससे जो रिसीट आई, जो पैसा आया, मतलब जो सर्विस का एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन हुआ है। फिर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स, वही जो ग्लोबल इतना ग्रोथ रेट कम हो रहा है उसका भी एक मेजर रीजन है। ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, एफडीआई का डिक्लाइन होना, ये सब रीजंस हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने के। इसकी वजह से वही सब थ्रेट्स आते हैं। ये मेंस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इंडिया कैन सस्टेन करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ लगभग 3% ऑफ जीडीपी, ऐसा बोला है इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने, कि इंडिया सस्टेन कर सकता है 2.5% ऑफ जीडीपी अगर हो जाए तो भी करंट अकाउंट डेफिसिट का। अभी तो इट इज जस्ट नियर अबाउट 1%, तो वी आर फार बिहाइंड लाइक बिकमिंग एन अनसस्टेनेबल इकोनॉमी इन दिस पर्टिकुलर सेंस। ठीक है भाई, आगे बढ़े। लेट्स कम टू डेटेड सिक्योरिटीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, लेकिन स्टिल एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ट्रेडेबल मतलब इनकी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, है ना, कोई रिस्क तो होता नहीं, इसमें रिस्क फ्री है ये। और क्या है ये, गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मतलब वही गवर्नमेंट के एज पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट की बैकिंग पे डिपेंडेंट है, और क्या है, रिस्क फ्री है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट थोड़ी डिफॉल्ट हो रही है। फिर डेटेड जी सिक्योरिटीज आर सिक्योरिटीज जिसपे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, फिक्स भी मिल सकता है, फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है, विच इज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो पहली चीज इसमें क्या याद रखनी है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, फेस वैल्यू पे। और तीसरी हाफ ईयरली बेसिस पे। तो ये डिस्काउंटेड वाला नहीं है, एक डिस्काउंटेड होता है, वो बताना कौन सा होता है, आगे दिए ही रखा है, चलो मैं बता देता हूँ। टी बिल, ट्रेजरी बिल, ये होता है आपका डिस्काउंटेड वाला। ये होता है आपका फेस वैल्यू, ये होता है आपका डिस्काउंटेड वैल्यू। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आपने 100 रुपये की खरीदी और उस पर आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलना है, तो जब आप वो देने जाओगे आपको 105 रुपये मिल जाएंगे, सिंपल। ट्रेजरी में इस पे टी बिल पे क्या होता है कि एक डिस्काउंट पे परचेज किया जाता है, कि भाई मान लो 100 रुपये की है, 5% ऐसा कुछ है, 5 रुपये का इंटरेस्ट रेट मिलना है, तो आप एक काम करो, अभी इसको 95 में खरीद लो, और जब आप वापस देने आओगे तो आपको 100 रुपये दे देंगे। ये डिफरेंस होता है बिटवीन डिस्काउंट वैल्यू, बिटवीन डिस्काउंटेड वैल्यू एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड एट फेस वैल्यू। क्लियर, बात समझ में आ गई। हाफ ईयरली बेसिस, ऑडिटेड सिक्योरिटी हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 1 साल से कम वाले। इन पे भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं। समझ में आई बात, ये इंटरेस्ट रेट इस पे क्यों है, क्योंकि 100 पे 5 रुपये का इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये इंटरेस्ट रेट पे नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं, है ना, समझ में आ गया। तो ये 100 रुपये में आपने खरीदा, 5% का इंटरेस्ट रेट लगा, 105 आपको मिल जाएंगे इसमें, तो ये इंटरेस्ट वाले हो गए। ये 100 रुपये की ट्रेजरी बिल आपको 95 की ही मिलेगी इनिशियली, और जब आप बेचने जाओगे तो 100 रुपये आपको आपके वापस मिल जाएंगे। तो दिस इज लाइक एट अ डिस्काउंट वैल्यू, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। अगर ये वाली चीज़ आपको क्लियर है। फिर कैश मैनेजमेंट बिल्स आर सिमिलर टू टी बिल्स बट आर इशूड एट मेच्योरिटी लेस देन 91 डेज, तो इससे भी कम है ना, 91 से भी अगर कुछ कम है तो वो कैश मैनेजमेंट बिल है। ये तीनों देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी थे, ये रे, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कंप्राइज ऑफ द इंटरनल डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पब्लिक डेट के, इंटरनल डेट के, मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंडर आती हैं तीनों चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी हैं। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे इशू होती है, तो आरबीआई करता है, ऑक्शनिंग करता है इनकी ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे, जो मतलब खरीद सकते हैं अलग अलग जाके, बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड्स, ये जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। बात समझ में आई, कौन, मतलब बेसिकली इनका करंट अकाउंट अगर है तो ये खरीद सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट फंड्स। एफपीआईज और कॉर्पोरेट्स को भी अलाउड है अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव लिमिट में, है ना, कि इतनी खरीद सकते हो उतनी खरीद सकते हो। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी और कॉर्पोरेट्स को भी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को तो रिसेंटली किया, थोड़े तो इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ाऊंगा भी अलग से आज। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को और कॉर्पोरेट्स को भी अलाउ किया है अंडर सर्टेन लिमिट्स टू इन्वेस्ट इनटू या फिर टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है गवर्नमेंट से, और दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये हो गया, है ना, ई कुबेर वगैरह से, एक तरीका क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए, जब भी उसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करना होता है। तो
गवर्नमेंट से, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। कब कब बेचता है आरबीआई, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब बेचेगा, जब उसको मार्केट से लिक्विडिटी सक करनी होगी, मनी सप्लाई कम करनी होगी, राइट। जनरली मनी सप्लाई कब कम करनी होती है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के बाहर से पैसा सक कर लेगा, और फिर जब उसे लगेगा तो वापस गवर्नमेंट जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं जो उसने बाहर बेची थी उनको वापस खरीद के पैसा जो है वो वापस इकोनॉमी में डाल देगा। तो पैसा जब डालेगा तो इकोनॉमिक बूस्ट थोड़ा तेज़ हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंजन थोड़ा तेज़ी से चलने लगता है। आई होप ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। ये ओएमओ वाली चीज़ मैंने आपको बताई दी। नाउ रिसेंटली आरबीआई डिसीजन फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रिगर्ड अ स्पाइक इन द बॉन्ड यील्ड। आप देखो ये चीज़ समझो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने की वजह से बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। देखो नाउ, जैसे आरबीआई ने बोला कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचना चाहते हैं, तो जितने भी लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, है ना, जो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल के लिए आ रही हैं, फटाफट इनको खरीद लेते हैं क्योंकि ये तो बहुत सिक्योर होती हैं। लेकिन फिर इस इन्वेस्टर को याद आएगा यार मेरा पैसा तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड में अटका हुआ है B1 नाम के, है ना, तो ये क्या करेगा, इस B1 को बेच देगा और इस B1 को बेच के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा, राइट। तो जब किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को लोग बहुत ज़्यादा बेचने लगे, मतलब क्या दिखा रही है कि उसका जो डिमांड है वो कम हो रही है, उसका जो प्राइस है वो कम हो रहा है। और प्राइस और यील्ड में क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। प्राइस बढ़ेगा तो यील्ड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो यील्ड बढ़ जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब लोग अपने बॉन्ड को बेचने लगेंगे, है ना, तो इसकी डिमांड कम होने लगेगी, जिस चीज़ की डिमांड कम होती है उसका प्राइस कम हो जाता है, करेक्ट। एक टाइम पे मूवीज़ में आने के लिए अरबाज खान ज़्यादा पैसे लेता होगा, अब डिमांड कम हो गई है तो प्राइस कम हो गया है। बात समझ में आई। तो B1 के बॉन्ड्स बिके, उसका प्राइस नीचे आया तो उसका यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी समझाऊं कि यील्ड क्यों बढ़ता है। देखो मान लो कोई बॉन्ड इनिशियली हमने 100 रुपये का खरीदा और उस पर हमें 10 रुपये का यील्ड मिलना था, 110 रुपये, ठीक है, क्लियर। तो बेचने पे उसको 110 रुपये में मिलने थे, मतलब वापस देने पे उसको हमें 110 रुपये मिलने थे। ना जैसे जैसे उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड क्या था, 10। अब मान लो प्राइस 95 हो गया, वापस तो अभी भी 110 मिलेंगे, बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 15। अब मान लो ये 80 हो गया, मिलेंगे तो अभी भी 110, तो बॉन्ड यील्ड कितना हो गया, 30। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे प्राइस डिक्लाइन कर रहा है बॉन्ड यील्ड जो है वो इंक्रीज कर रही है। समझ आया। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से खेलने की वजह से कैसे डिफरेंशिएशन हो जाता है वो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया है अभी रिसेंटली, 28% का। ऑनलाइन गेमिंग पे, हॉर्स रेसिंग पे और कजिनोज पे 28% का जीएसटी लगाया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे रेट वगैरह नहीं पूछेंगे। अब इसमें एक बात याद रख लो, अगर पूछेगा भी तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ ट्रैप करेगा। जो ये 28% का रेट है ये एंट्री पे है, कि मान लो आपने ऑनलाइन गेमिंग शुरू करी या फिर आपने हॉर्स रेसिंग शुरू करी, है ना, आपकी बेटिंग पे नहीं है। आपने ऑनलाइन, आपने जैसे मान लो अपना अकाउंट बनाया या फिर आपने ऐसे 1,000 रुपये अपने उसमें पर्स में डाले कि इससे मैं अब ऑनलाइन बेटिंग करूंगा, है ना, तो उस 1,000 रुपये पे है ये जो टैक्सेशन है। तो एंट्री पॉइंट पे 28% का टैक्स है। फिर आप जो बेटिंग लगाते हो, जो बेट्स लगाते हो, और अगर आप जीत जाते हो तो आपकी विनिंग्स का 30% गवर्नमेंट डिडक्ट करके ले जाएगी। तो एंट्री पॉइंट पे 28% और विनिंग्स का 30%। एंट्री का 28%, विनिंग्स का 30%, ये है टैक्सेशन। तो ये याद रखना, ये चीज़ याद रखना, इसको मिक्स करके पूछ लेगा अगर पूछेगा तो, वैसे तो चांसेस कम है बट स्टिल याद रखना, ठीक है। फिर ऑफशोर जो ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स हैं उनको भी टैक्स के अंदर लेके आए हैं हम लोग, कि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी इंडिया में ये जीएसटी वाला टैक्स पे करेंगी, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। फिर जीएसटी के बारे में आप जानते ही हो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंगल डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट कर दिया इसने, सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है ये पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। फिर 1 जुलाई को आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था नेशन वाइड जीएसटी, सबसे पहले 2000 में किलकर टास्क फोर्स ने दिया था, दिस इज फॉर मेंस, ओके। देन एक प्रतिदिन करके देयर इज अ पोर्टल, वेब बेस्ड पोर्टल, जहां पे डेली परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जीएसटी की, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जब ड्राफ्ट 2 भरोगे तब बताऊंगा कि आईआरएस कस्टम्स करके एक सर्विस होती है, वो कहाँ भरनी है, उसी से आप सीबीआईसी में लास्ट में जाके तैनात होते हो, मतलब सीबीआईसी का पार्ट बनते हो, ठीक है, क्लियर। जीएसटी की स्ट्रक्चर में एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी, एक इंटर स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कौन अप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट। इंटर स्टेट जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई करेगी और बाद में शेयर कर देगी
है ना, विद द स्टेट्स बेस्ड ऑन किसके यहाँ पे कितनी सेल हुई। डेस्टिनेशन बेस्ड है ये, सोर्स बेस्ड नहीं है, याद रखना। तो मतलब ये देखा जाएगा कि पर्टिकुलर जो भी ये पूरा आईजीएसटी है ये किस प्रोपोर्शन में जाएगा, कि अल्टीमेटली कौन सी स्टेट कितनी ज्यादा डेस्टिनेशन बेस्ड थी वेरियस ट्रेड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, क्लियर हो गई बात, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करेगा, कलेक्ट करेगा और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। फिर जीएसटी नेटवर्क क्या है, ये तो नीड फॉर जीएसटी तो ठीक है, आपको पता ही है, सिंगल मार्केट, टैक्सेशन रिजीम को, ये तो सिर्फ बेसिक सी चीज़ें हैं। ओके, फिर जीएसटी सबसे पहले 3 बॉडीज इसमें हम पढ़ेंगे। जीएसटी नेटवर्क ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। ये जीएसटी का बेसिकली आईटी बैकबोन है ना, जितना भी टेक्निकल चीज़ें हैं हैंडल करना वो सब यही करता है। अभी जीएसटी नेटवर्क को रिसेंटली में गवर्नमेंट कंपनी बनाया गया था, तो अब इसके जो 100% शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास और 50% स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ के पास। क्लियर। फिर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 से आई थी ये, और ये सेकंड अपील है। मतलब सबसे पहले जब आपका अगर कोई भी आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराना है ना, तो सबसे पहले आप अपनी अपीलेट अथॉरिटीज़ वगैरह में जाओगे, अपनी डिविजनल अथॉरिटीज़ में जाओगे, फिर उसके बाद जो सेकंड अपील होगा वो यहीं पे होगा। तो द सेकंड अपील इन जीएसटी लॉज गोज टू द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। नाम में पता चल रहा है ना, अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये, अपील्स के अगेंस्ट बातों को सुनता है ये ट्रिब्यूनल। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, जीएसटी अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आप आते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, उसी की बात हो रही है, स्टैचुटरी बॉडी है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट से आई थी ये। फिर अभी रिसेंटली में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में इसका अमेंडमेंट किया गया, इसके क्वालिफिकेशंस को चेंज किया गया है। अब बताया गया है कि जो एडवोकेट जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मामले में एक्सपीरियंस रखते हैं वही इसका पार्ट बन सकते हैं, वही इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें मेंबर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो मेंबर और प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज है वो अभी इसमें 50 ईयर्स है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है, जो एज लिमिट है वो प्रेसिडेंट की अब 70 है और मेंबर्स की 67 है। तो प्रेसिडेंट की पहले 67 थी, उसको बढ़ा के 70 किया, और मेंबर्स की 65 थी, उसको बढ़ा के 67 किया। क्लियर, तो ये बात याद रखोगे, मिनिमम एज 50, मैक्सिमम एज प्रेसिडेंट की 70 और मेंबर्स की 67। जीएसटी काउंसिल भी, जीएसटी काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हमने देख लिया, स्टैचुटरी बॉडी है। जीएसटी नेटवर्क क्या है, गवर्नमेंट नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्रेसिडेंट ने एस्टैब्लिश करी 279A के अंतर्गत। जॉइंट फोरम है, चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स होते हैं हर स्टेट के मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, या फिर अगर कोई मिनिस्टर चाहता है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, डिसीजन इसकी वोटिंग के थ्रू होती है। कोई भी डिसीजन तब पास होता है जब 75% मेंबर जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं वो उस पर हामी भर देते हैं, मतलब उसके लिए एग्री कर जाते हैं। तो द वोटिंग परसेंटेज रिक्वायर्ड टू क्लियर अ पर्टिकुलर प्रपोजल इज 75%, मतलब 3/4। सेंटर अकेला है ना बैठ के 33% वेटेज रखता है। लेकिन अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कोई भी अमेंडमेंट नहीं लेके आ सकती है अगर स्टेट्स, कोई भी स्टेट उससे एग्री नहीं कर रही है तो, क्योंकि 75% चाहिए होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 33% है। हाउएवर इसमें एक बात और समझो जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका मैथ्स चेक होगा। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देखो एक अनडिफाइंड वीटो जैसा है। कैसे, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम मतलब ये प्रपोजल पे हम एग्री नहीं करते हैं, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी सिर्फ कितना कर पाएंगी, 67%। लेकिन चाहिए कितना, 75%। तो अगर सेंटर ने मना कर दिया तो किसी भी कीमत पे जीएसटी काउंसिल का प्रपोजल पास नहीं हो सकता। तो भले ही एग्री के लिए वो ना हो, लेकिन अगर डिसएग्री कर दिया सेंटर ने तो प्रपोजल पास नहीं ही होगा। ओके, फिर अगला टॉपिक है आपका वाइडनिंग टैक्स बेस। ये पूरा का पूरा वैसे दिस इज कंप्लीटली अ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक। इसमें सारी चीज़ें वही दे रखी हैं कि टैक्स बेस का क्या मतलब होता है, इसको कैसे वाइडन किया जाता है। 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना है अभी, 11.1%। इसमें डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशो है 6% और इनडायरेक्ट है 5.1%। जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, उसमें ये नंबर बहुत हाई होता है। हमारे यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशो एक्चुअली में बहुत कम है। हमारे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 5.3% जनता ऐसी है जो इनकम टैक्स भरती है। ठीक है, क्लियर, 5.3% है सिर्फ जो इनकम टैक्स भरती है। क्यों है हमारे यहाँ पे इतना टैक्स बेस कम, इसके रीज़न वही है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, लिटिगेशन में बहुत लोग फंसे हुए हैं, और एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे यहाँ ज़्यादा जो लोगों को टैक्स वगैरह पे एडवाइस कर सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ सके। आप देख लो, आपको कल इनकम टैक्स में बैठा देंगे, IRS IT बना देंगे आपको,
ठीक है, लेकिन आपने पढ़ रखी नहीं है बुक्स, तो आपके पास कहाँ से एक्सपर्टीज आएगी? वो ट्रेन करेंगे आपको, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना पूरा बनने में। फिर नेक्स्ट है आपका एक तो छोटा सा टॉपिक, एंजल टैक्स। देखो एंजल टैक्स पे कुछ चेंजेस किए गए थे। एंजल टैक्स सबसे पहले वो टैक्स होता है जो टैक्स लेविड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज। तो जैसे आपने सुना होगा शार्क टैंक वगैरह अगर आप देखते हो, तो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? जो स्टार्टिंग में अनलिस्टेड कंपनीज को फंड करता है। ठीक है, एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट जो ज्यादा फंड करता है ना, तगड़ा फंड करता है। एक होता है एंजल फंडिंग, है ना, एंजल राउंड उठा लिया, है ना, कि भाई आप एक एंजल की तरह आ गए हमारे लिए, हमारे पास तो कुछ ज्यादा था भी नहीं, आपने इनिशियली हमें पैसा डाल दिया। अब हो क्या रहा था कि बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनीज जो उनके एक्चुअल वैल्यूएशन थी मार्केट में, उससे ज्यादा रेट पे पैसा उठा रहे थे। अब इस ये देखा गया कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो फॉरेन जगह से पैसा उठा रही थी, फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठा रही थी अपनी मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा, और वो पैसा गलत तरीकों से चैनलाइज किया जा रहा था। दैट अनअकाउंटेड मनी was being channelized for wrong purposes, and that is why the government has put up, you know, control over it, regulation over it. ठीक है, तो टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, उस टैक्स को कंटिन्यू किया है। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोज चेंजेस इन द एंजल टैक्सेशन एंड नोटिफाइड फॉरेन एंटिटीज व्हिच विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स प्रोविजंस। कुछ फॉरेन एंटिटीज एग्जेम्प्ट की गई हैं, और नहीं तो एंजल टैक्सेशन फॉरेन एंटिटीज पे लगाया गया है। क्लियर बात समझ में आ गई एंजल टैक्स क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इसकी एक ड्राफ्ट आई है कुछ, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड चीज़ें उसके अलग से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे कभी भी मिनिस्ट्री में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स दी है। सबसे पहला, द पॉलिसी रीइंफोर्सेस द यूनाइटेड नेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। पहली चीज ये क्या करती है? रीइंफोर्स करती है यूनाइटेड नेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को। तो उसका नाम याद रखना बस, कि इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था यूएनएफपीओएस को, है ना, एक स्टैटिस्टिक्स को लेके कोई प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशन के, उसको इंडिया ने 2016 में ही अडॉप्ट कर लिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। फिर प्रेजेंट स्टेटस क्या है? मॉस्पी नोडल एजेंसी है। फिर एक डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स है जो कोऑर्डिनेट करता है। नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन है जो एडवाइजरी बॉडी है। और ये यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों में आता है। स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ? यूनियन में और कंकरेंट में। तो मतलब स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है क्योंकि कंकरेंट में आता है, लेकिन यूनियन का जो कानून होगा वो हमेशा उसे ओवरराइड कर जाएगा, क्योंकि यूनियन में भी आता है, कंकरेंट में भी आता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी मॉस्पी, कोऑर्डिनेशन एजेंसी डीईएस, एडवाइजरी बॉडी एनएससी, लिस्ट, यूनियन एंड कंकरेंट। इतना ही पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। चलें आगे। ओके, थर्ड पे आते हैं। सो वी आर डन विथ इनिशियल 2 टॉपिक्स और 1 घंटा हो गया लेक्चर का। ओके चलो ठीक है, देखते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है। फिर उसके बाद 1 घंटा और पढ़ाता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को रोकेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे क्योंकि फिर प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी, पता चले अपलोड ही नहीं हो रहा है। तो जितना अगले 1 घंटे में कवर कर सकते हैं वो करेंगे, एंड देन विल स्टॉप इट। ठीक है, चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सो सबसे पहली बात क्या है कि जो LFPR है वो इंक्रीज हुआ है इंडिया का 55.2% से 57.9। अब देखो कुछ चीज़ें समझ लो पहले कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है? वो लोग जो काम कर रहे हैं, वर्किंग है, या काम की तलाश में है, या काम करने के लिए अवेलेबल है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। आपके पूरे देश की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज हिस्सा आपकी लेबर फोर्स है, उसी को बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। बात समझ में आ गई? दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। आपकी टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जनता एम्प्लॉयड है, काम कर रही है, उसको बोलते हैं वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? लेबर, ये बहुत ध्यान से सुनना, पूरी लेबर फोर्स में, है ना, लेबर फोर्स ये वाली, कितने लोग अनएम्प्लॉयड बचे, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब यहां पे गलती क्या करते हैं लोग? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते टाइम कई बार पॉपुलेशन से डिवाइड करा देते हैं। यूपीएससी भी यहीं फंसाएगा आपको। वो बोलेगा आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन द नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नो, नॉट आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि अगर कोई 2 साल का बच्चा भी है तो उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसको भी हम अनएम्प्लॉयड मान रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। यू शुड बी पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। अगर आप लेबर फोर्स का पार्ट है और फिर अनएम्प्लॉयड है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैलकुलेट किया जाएगा। एक बार मैथमेटिकली समझा देता हूँ, दिमाग में फिट हो जाएगा। देखो, ये इंडिया के लेटेस्ट डेटा है। इंडिया में अभी 2022-23 में
जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 57.9% है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो 56% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट डेटा है, इसको समझ लो मैथमेटिकली तो क्लियर हो जाएगा। मान लो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की है। ठीक है, मान लो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की है। एलएफपीआर कितना है? 100 में से 57.9, मतलब 57.9% लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। ठीक, अब एम्प्लॉयड कितने हैं? टोटल 100 में से 56 लोग, मतलब जो ये 57.9% लोग 57.9 लोग थे, इसमें से 56 लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं। तो अनएम्प्लॉयड लोग कितने बचे? 1.9। अब इसी को अगर परसेंटेज में निकालना है तो एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स ये क्या हो जाएगा? 1.9 डिवाइडेड बाई 57.9 विच इज इक्वल टू 3.28, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन हियर, 3.2। बात समझ में आ गई? हमने क्या किया, जितने अनएम्प्लॉयड लोग थे उसको टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड किया, टोटल पॉपुलेशन से नहीं। टोटल पॉपुलेशन से कर दूंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.9% हो जाएगा। तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या दिखेगा? अनएम्प्लॉयमेंट विल हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट रेटिंग देन। समझ में आ गई बात? और यहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयड लोग जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आउट ऑफ टोटल लेबर फोर्स देख रहे हो। अगर देखो इसी को मैं चेंज करूं, अगर मैं बोलूं कि नहीं ये टोटल पॉपुलेशन का है, तो कितना हो जाएगा कि भाई 56 लोग वर्किंग हैं और टोटल 100 लोग थे, तो मतलब 44 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो टोटल हमारा 44% होना चाहिए था फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नहीं। तो ये गलती मत करके आना एग्जामिनेशन में, यहाँ फंसाएगा कमीशन आपको। ठीक है, यहाँ फंसना नहीं है, ये बात याद रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में आप टोटल क्या देखते हो? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और उसी के परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाली जाती है। आई होप नाउ यू विल नेवर मिस इट। मैथमेटिकली समझ में आ गया आपको ये पूरा? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो ये कौन निकालता है? इट इज लॉन्च्ड बाय दी एनएसएसओ। सबसे पहली चीज यही आपको देखनी है, इट इज लॉन्च्ड बाय एनएसएसओ 2017 में। उसके बाद से एनएसएसओ निकालता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, सब कुछ निकालता है, एनुअली देता है। एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर, यूआर, यही तीनों चीजें जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। ठीक है, एक होता है करंट वीकली स्टेटस और एक होता है यूजुअल स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस सिर्फ अर्बन एरियाज में दिया जाता है, यूजुअल स्टेटस अर्बन और रूरल एरियाज दोनों जगह दिया जाता है। करंट वीकली स्टेटस हर 3 महीने में निकाला जाता है और यूजुअल स्टेटस हर साल निकाला जाता है। ठीक है, फिर इसका नाम वीकली क्यों है? इसका नाम वीकली इसलिए क्योंकि हर 3 महीने बाद जब भी आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या वर्कर पॉपुलेशन रेशो या अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कैलकुलेट करोगे तो आप उसमें जो टाइम पीरियड है वो एक हफ्ता लोगे कि पिछले हफ्ते कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, पिछले हफ्ते कितनी लेबर फोर्स थी, पिछले हफ्ते कितने वर्कर टू पॉपुलेशन था, पिछले हफ्ते कितना अनएम्प्लॉयमेंट था। राइट, तो पिछले हफ्ते का आप निकालते हो हर 3 महीने में, इसलिए इसको बोलते हैं करंट का वीकली स्टेटस। ओके, स्टेट पीसेस में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फिर यूजुअल स्टेटस, वो आपको मैंने बता दिया, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगह होता है और ये एनुअली होता है, ये हर 3 महीने में, मतलब बेसिकली क्वार्टरली। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टरली लिख लो तो आपको याद रहेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलिए, ये मैंने आपको समझाई दिया क्या होता है। फिर इसकी फाइंडिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। यूपीएससी जनरली ऐसी फाइंडिंग्स पूछता नहीं है, बट वही सिंपल सी बात है कि जो मेन है वो वुमेन से ज़्यादा कमा रहे हैं, हम रिप्रेजेंट, वो तो है यार, मतलब पार्टिसिपेशन भी कम है और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी नहीं है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है रूरल वुमेन का वो इंक्रीज हो रहा है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन में। सो लॉट ऑफ वुमेन आर गेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है भाई, लेकिन हाउएवर जो एवरेज आवर्स वर्कड पर वीक है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन के, वो कम हुए हैं। याद रखना बस इसको, इसका कोई लॉजिक नहीं पूछेगा आपसे कमीशन, इसको याद रखना। ओवरऑल सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो वर्किंग घंटे हैं वो कम हुए हैं। एवरेज आवर्स वर्कड पर वीक अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन कैटेगरी हैव डिक्रीज्ड, हाउएवर द ओवरऑल नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन हैव इंक्रीज्ड। क्लियर? चलो, नोबेल प्राइज मिला है इस बार क्लॉडिया गोल्डिन जी को फॉर एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन लेबर मार्केट आउटकम। ठीक है, तो उन्होंने हिस्टोरिकल डेटा पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की और फाइनली ये बताया कि कैसे विमेन लेबर मार्केट आउटकम किस तरीके से चलता है। राइट, ये सिक्स कैटेगरी जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है 1968 में ही आया था, जबकि नोबेल प्राइज वगैरह जो है वो 1901 से मिल रहे हैं। तो एक छोटी सी बात ही याद रखना, क्योंकि वो ऐसे देगा क्वेश्चन में कि नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंस द बिगिनिंग, नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक साइंसेज हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंस द बिगिनिंग, नहीं, ये काफ़ी लेट आया था। ठीक है, फिर तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में गोल्डजिन ने क्या बताया? सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक यू कर्व होता है,
वो यू कर्व क्या होता है सबसे पहले वो समझो। देखो, यू कर्व ये कहता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में पहले डिक्लाइन होता है फिर इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले पुअरेस्ट जो कंट्रीज हैं वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल्स का बेहतर होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड होगी, तो एग्रीकल्चर में वेमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज आती जाएंगी तो एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज़ की तरफ आ रहे हैं, राइट। एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ आ रहे हैं, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम होता रहेगा। फिर जब आपकी इकॉनमी और डेवलप हो जाएगी, अब आप डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे, हाई इनकम कंट्री बन जाओगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और विमेन को सर्विस सेक्टर में काम करना रिलेटिवली आसान होता है। एंड ऑब्वियसली सोशल इंडिकेटर्स भी बेटर हो जाते हैं, तो दोबारा से ये बढ़ेगा। सो दैट इज वाई दिस इज अ यू शेप्ड कर्व, अ यू शेप्ड कर्व, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, पुअर कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री, हाई इनकम कंट्री, राइट। तो यही जो यू शेप्ड है, इसी कर्व के बाद गोल्डन जी ने बोला कि कोई भी हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है बिटवीन विमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी हुआ होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी रही है लेकिन विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट नहीं बढ़ रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के बिना भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा होगा। सो बेसिकली देयर इज नो कंसिस्टेंट एसोसिएशन, देयर इज नो हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन। तो इन्होंने यही किया था यूएसए के बहुत यानी सालों साल के पूरे डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके दिस वॉज वॉट शी रीच्ड डाउन टू। क्लियर, बात समझ में आ गई है। अब ये चीज़ें क्या किस चीज़ को इन्फ्लुएंस होती हैं, तो ऑब्वियसली सोशल नॉर्म्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव गैप्स हैं क्या, कस्टम है ना, मैरिज की वजह से बहुत सारी फीमेल्स को अपने जॉब छोड़नी पड़ती है, एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है ये इसी रीजंस की वजह से है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंटहुड का इफेक्ट है ना, माँ बन गए तो काम मत करो एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत बढ़ गई हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ गई हैं, तो इसलिए इनकी वजह से विमेन जो है अपनी मैरिज और अपने चाइल्ड बर्थ को डिले करती हैं, दस उनके एजुकेशन और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स एट प्ले, दैट इज वाई वी सी दैट देर इज नो हिस्टोरिकल कंसिस्टेंट एसोसिएशन। तो ये याद रखना है, ये चार टर्म्स याद रखनी है। No historically consistent association between women participation and labor market and economic growth. Between women participation in the labor market and the economic growth, there has been no historically consistent association. याद रखोगे ये चीज, यूपीएससी इसको वो करके देगा, प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं, नो कंसिस्टेंट एसोसिएशन। क्लियर। ये वाला जो यू शेप्ड भी है डेवलपमेंट प्रोसेस का, देखो यहाँ पे भी पता चल रहा है ना कि एक ही कंट्री में अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंट नहीं है कुछ भी, राइट। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं है ये। फिर ये इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं जेंडर गैप को ठीक करने के लिए, मेंस ओरिएंटेड चीज़ है ये, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वेजेस वगैरह में। दिस इज नॉट फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गिग इकोनॉमी का। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है? फ्री मार्केट सिस्टम है ये, जहाँ पे आप टेम्परेरी टाइम के लिए आते हो, अपनी सर्विसेज देते हो, इंडिपेंडेंट वर्कर की तरह काम करते हो, शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट में एंगेज होते हो और अपना काम खत्म होता है तो बंद कर देते हो। तो यू आर नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय, यू आर जस्ट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, या फिर जस्ट अ टेम्परेरी एम्प्लॉय, जस्ट एन इंडिपेंडेंट वर्कर। क्लियर। दो तरीके के गिग वर्कर होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड और एक नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड मतलब जितने भी आप प्लेटफॉर्म देखते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो, जितने भी प्लेटफॉर्म देखते हो, इनके साथ जितने भी डिलीवरी वाले एसोसिएटेड हैं ना, डिलीवरी पार्टनर एसोसिएटेड है, वो सब क्या हैं? वो उस प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर हैं, है ना, इंडिपेंडेंट है वो, उसके एम्प्लॉय नहीं है। जो आपका डिलीवरी पार्टनर है जोमेटो का, वो जोमेटो का एम्प्लॉय नहीं है, दैट ही और शी इज जस्ट अ गिग वर्कर। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड वो होते हैं जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स पे, ऐप्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर कौन से होते हैं? दे आर जनरली कैजुअल वेज्ड एंड ओन अकाउंट वर्कर्स इन द कन्वेंशनल सेक्टर, एंगेज्ड ईदर पार्ट टाइम और फुल टाइम। कैजुअल वेज्ड एंड ओन अकाउंट वर्कर्स, तो ये कैजुअल सेक्टर में जो एम्प्लॉयड होते हैं, कन्वेंशनल सेक्टर्स में, इसको बोलते हैं हम नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। और जो प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज हो वो प्लेटफॉर्म बेस्ड। इंक्रीज क्यों हो रही है गिग इकॉनमी? बहुत सिंपल से रीजंस होते हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं आपको, इंटरनेट ज़्यादा पेनिट्रेट हो रहा है, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, इंटरऑपरेबल हो गए हैं प्लेटफॉर्म्स, है ना, आपस में मर्ज हो रहे हैं, आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो पे काम कर रहे हो, है ना, वर्क अप्रोच चेंज हो रहा है, लोगों को थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स चाहिए। फिर कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की डिमांड भी बढ़ रही है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, बस एक कोड ऑन वेजेस ने बोला था कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज होनी चाहिए इन लोगों की, गिग वर्कर्स की भी। सोशल सिक्योरिटी वाले ने बोला था कि सोशल सिक्योरिटी भी इनको देनी चाहिए गिग वर्कर्स को, बहुत ज़्यादा अभी तक हमारे यहाँ पे नहीं है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना।
डॉक्यूमेंट ऑन सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर वॉज रिलीज्ड बाय G20। ठीक है, G20 के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की मीट हुई थी, उसमें ये डॉक्यूमेंट सामने आया था। तो आप बस इतना याद रखो, सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ये डॉक्यूमेंट G20 से एसोसिएटेड है। इतना याद रखोगे, क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। राजस्थान भारत में वो पहली गवर्नमेंट बनी है जिसने गिग वर्कर्स के लिए बिल निकाला है। पायनियर बना है राजस्थान, इस सेक्टर में पहला स्टेट बना है। चले आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका ICRR, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, देखो क्या है, सुन लो ध्यान से। बेसिकली सबसे पहले एक चीज क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कितना हिस्सा RBI के यहाँ कैश के रूप में रखेंगे, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। आप अपनी टोटल NDTL का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कितना हिस्सा RBI के यहाँ कैश के रूप में रखेंगे, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। NDTL का मतलब क्या होता है, ऑल लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक। मान लो बैंक का नाम है ABC, है ना, उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है, बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है, जितना भी बैंक के अंदर डिपॉजिट आया वो बैंक का लाइबिलिटी, माइनस डिपॉजिट ऑफ ABC इन अदर बैंक। मतलब वो जो ABC बैंक है उसके किसी बैंक में डिपॉजिट होंगे, तो वो क्या हो गया, उसका कहीं ना कहीं एक एसेट टाइप की चीज हो गई। ठीक है, तो जितना एक ABC बैंक की लाइबिलिटी है माइनस the deposits of that ABC bank in the other banks, this is known as net demand and time liability। net liability है ना, net demand and time की net liability कितनी है, net आ गया ना यहाँ पे, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी net demand and time liability का कितना हिस्सा आपको RBI में कैश की तरह रखना है, कैश के फॉर्म में रखना है, is nothing but cash reserve ratio। ओके, all scheduled commercial banks are required to maintain CRR as per the RBI Act। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट से बताओगे SLR के बारे में, SLR क्या होता है, उसको CRR से कंपेयर करके बताओ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। चलो नेक्स्ट, अब आता है कॉन्सेप्ट इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो का। देखो, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो CRR की तरह ही है, बैंक को एक पर्टिकुलर मनी RBI में रखना पड़ता है, राइट, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। अच्छा, इंटरेस्ट रेट जो है वो CRR पे भी नहीं मिलता है, ये भी याद रखना, देयर इज नो इंटरेस्ट रेट ऑन CRR। इसलिए इसने यहाँ पे एक लाइन गलती लिखी है, देखो इसने लिखा है द इंटरेस्ट रेट चार्ज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम CRR। डिफरेंट कैसे है, दोनों पे जीरो ही है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, सो ये मिस्टेक की है इसने। देयर इज नो इंटरेस्ट रेट, मैंने यहाँ पे करेक्ट करा दिया आप लोगों को, ये देयर इज नो इंटरेस्ट रेट ऑन CRR और ICRR। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, द रेट चार्ज्ड वुड बी डिफरेंट फ्रॉम CRR। इसका मतलब समझाता हूं अभी, पहले ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट समझो। देखो, एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो यहाँ पे नहीं समझाया इन लोगों ने, एटलीस्ट लिखा नहीं है, मैं समझा देता हूँ। CRR और ICRR में क्वेश्चन में फंसोगे, गलती करोगे तो इसी कॉन्सेप्ट पे करोगे। यही मैं बोल रहा था कि कुछ गैप्स हैं, कुछ लूप होल्स अलग अलग जगह पे। तो देखो इसको, ICRR जो है वो पूरे एंटायर NDTL पे अप्लाई नहीं होता है। CRR के टाइम पे मैंने क्या बताया, पूरी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कितना शेयर, कितना परसेंटेज आप RBI में कैश की तरह रख रहे हैं, वो CRR है। ICRR में वो पूरा NDTL नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं, जिस दिन हमने आपको बोला कि इतने पीरियड से इतने पीरियड का ICRR दो, उस टाइम पे आपके NDTL में कितना इंक्रीमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि 1 जनवरी से लेके और 29 फेब पे आपको ICRR सबमिट करना है, तो हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको, अगर मैं आपको बोलूं कि आप आने वाले महीने में 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक ICRR भरोगे, तो अब 1 अप्रैल से लेके 1 जून में जो NDTL में इंक्रीज होगा उसकी परसेंटेज पे ICRR लगाया जाएगा। ICRR is applied upon the increment that has happened in the net demand and time liability of a bank over a certain specific time period। बात समझ में आ गई है? ICRR is not applied on the entire NDTL, rather it is applicable only on the increased NDTL over a specified time period, है ना, increased पे। 1 अप्रैल को मान लो आपके पास 100 रुपए के NDTL थे, 1 जनवरी और 1 जून को आपके पास सपोज करो 200 रुपए के NDTL हो गए,
तो या फिर 300 के हो गए, तो जो CRR है ना, वो इस पूरे 300 पे लगेगा, लेकिन जो ICRR है वो सिर्फ इस इंक्रीमेंट 200 पे लगेगा। आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर है अब। ओके, चलें आगे बढ़े। यहां पे देखो कैसे समझाया है ये। NDTL अगर 100 रुपए है, ठीक है, CRR 4.5% है, तो ₹4.5 आप CRR के रूप में रख दोगे। टोटल मेंटेनेंस विद RBI 4.5। अब मान लो आपका ICRR 10% कर दिया, है ना, और नया जो NDTL है आपका वो 150 है, तो CRR लगेगा इस पूरे 150 पे 4%, जो कि 6.75 रुपीज। लेकिन ICRR जो 10% है वो लगेगा इंक्रीज इन NDTL पे। इंक्रीज इन NDTL कितना है, पहले 100 था, अब 150 हुआ, तो ये जो 50 है इस इंक्रीमेंट पे ICRR लगेगा 10% का, विच विल बी 5 रुपीज। जैसा टोटल ऑफ 11.75 रुपीज यू विल हैव टू कीप इन द बैंक। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको एकदम से। अब आ जाते हैं न्यूज़ पे। आरबीआई ने ICRR का यूज़ किया था लिक्विडिटी को सक करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, और फिर धीरे धीरे उसको अब आरबीआई क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यू। ठीक, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वो पहले इंप्लीमेंट किया जब लिक्विडिटी ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन को वैसे आरबीआई टारगेट कर रहा है, इन्फ्लेशन वैसे इंडिया में थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो इसलिए उसको लेके आए। फिर जब देखा कि लिक्विडिटी थोड़ा स्टेबलाइज हो गई है, तो ICRR को बंद कर दिया। क्लियर, इंटरेस्ट रेट दोनों पे ही नहीं मिलता है। तो वही जो मैं बोल रहा था कि द रेट चार्ज वुड बी डिफरेंट। इसका क्या मतलब है कि भाई जो रेट, मान लो CRR का रेट था 4.5 और ICRR का रेट था 10, तो ये जो रेट है जिसपे आपको CRR और ICRR चार्ज किया जाएगा वो डिफरेंट होता है। इंटरेस्ट रेट का कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट रेट दोनों पे नहीं मिलता आपको, बैंक को कुछ नहीं मिल रहा है पैसा रखने पे। करेक्ट, समझ में आ गई बात। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, स्पेंडिंग लोन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, बैंक की लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट। करेक्ट, बैंक का रेजिलियंस बढ़ता है कि मान लो बाई चांस ऐसे बैंक रन के केस आ जाए तो आरबीआई से वो अपना पैसा निकलवा के दे सकते हैं, आरबीआई के पास जो पैसा रखा है, ऑल ऑफ दैट। सिंपल चीज़ है ये बिल्कुल। फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि एक टूल होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। ये अलाउ करता है आरबीआई को टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स विदाउट गिविंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न टू द बैंक, है ना। ये आप आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई सीधा सीधा उनसे क्या मांग सकता है, पैसा डिपॉजिट करा सकता है बैंक से, एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स, और उसके बदले उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं देगा। तो आरबीआई तो ऑब्वियसली रेगुलेटर है भाई, कुछ भी कर सकता है। फिर रेपो रिवर्स रेपो के बारे में आप जानते ही हैं, OMOs के बारे में आप जानते ही हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है, टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिस पे पैसा उठाते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन उठाना है आरबीआई से, तो वेज एंड मीन्स एडवांस नाम की चीज़ पे उठाया जाता है। रेपो रिवर्स रेपो सबको पता है, बैंक जिस रेट पे आरबीआई से पैसा ले वो रेपो, और बैंक जिस रेट पे आरबीआई को पैसा दे वो रिवर्स रेपो। चलिए आगे। फिर सरप्लस ट्रांसफर किया है आरबीआई ने 87,000 करोड़ का यूनियन गवर्नमेंट को। अभी देखो इसको समझ लो, आरबीआई किसकी बॉडी है, आरबीआई गवर्नमेंट की बॉडी है ना भाई। आरबीआई इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आरबीआई जो भी कमा रही है उस पर गवर्नमेंट का हक बनता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट का कोई PSU है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो जो भी पैसा कमाएगा, वॉट एवर दैट PSU इज अर्निंग, दैट PSU हैज टू पे एन अ डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, राइट। तो इसी तरीके से अब आरबीआई को PSU तो है नहीं, लेकिन आरबीआई प्रॉफिट बहुत जनरेट करता है। अच्छा, लेकिन आरबीआई अपनी इनकम पे या प्रॉफिट पे इनकम टैक्स नहीं देता है गवर्नमेंट को। रेदर उसकी जगह क्या किया जाता है, एज पर आरबीआई एक्ट आरबीआई हैज टू ट्रांसफर द सरप्लस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। सेक्शन 47 है ये आरबीआई एक्ट का, राइट। क्योंकि आरबीआई का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत कम होता है, और इंटरेस्ट रेट उसका बहुत ज़्यादा है ना। सारे बैंक से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, सब बैंक आरबीआई से पैसा उठा रहे हैं, रेपो इतना लगा रहा है, तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट बहुत बहुत कमाता है आरबीआई उससे, लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत कम है, तो बहुत सारा सरप्लस बच जाता है। पहले आरबीआई इस सरप्लस को अपने कंटिजेंसी फंड में रखा करता था, अपने एसेट डेवलपमेंट फंड में रखा करता था। लेकिन फिर 2013 में मालेगाम कमेटी ने और फिर बिमल जालान कमेटी ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को रिवाइज करने की रिकमेंडेशंस दी, और उसके बाद क्या हुआ, सरप्लस जो है ये अब गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। It is not now entirely, it is not kept in the contingency fund and the asset development fund, now it is transferred to the government of India। ठीक है, ये मतलब देखो आप, पहले कितना कम होता था ये, है ना, 15-15 हज़ार करोड़ होता था, और अभी 99,000 करोड़, यहाँ पे आप देखोगे तो 87,000 करोड़, बहुत हाई। तो इतना सरप्लस आरबीआई अपनी जेब में लेके घूमता था। ये बहुत हाई भी गया, देखो इस पर्टिकुलर ईयर में ना, काफ़ी हाई पे जाता है ये, 1,70,000 करोड़ के आसपास है ये, बहुत ही हाई। तो गवर्नमेंट का बहुत पैसा आ जाता है इस चीज़ से। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम लिबोर
तो देखो ये बहुत वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट जस्ट कवर करने के लिए करते हैं क्योंकि नहीं तो फोमो क्रिएट होता है। ओके तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है, एंटिटीज को बोला है कि यू हैव टू कंप्लीटली ट्रांजिट अवे, यू हैव टू कंप्लीटली मेक ट्रांजिशन फ्रॉम लिबोर। लिबोर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। नाम से समझ में आ रहा है, इंटरबैंक। बैंक्स अगर आपस में इंटरनेशनली एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं तो किस रेट पे देंगे, उस रेट का रेफरेंस बेंचमार्क क्या होगा, वो था लिबोर। राइट, लिबोर इज अ global benchmark interest rate. Libor is a global benchmark interest rate at which major global banks lend to one another in the international interbank market for short term loans. समझ में आ गई बात? अब ये पहले ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन चलाता था, फिर 2014 के बाद इसको यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी चलाती है। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है क्योंकि इसका डीरेगुलराइजेशन हो चुका है। मुझे लगता है कि इस पे चीज़ पूछेगा, अगर याद रखना है तो बस याद रख लो, यूके की एफसीए करंटली इसको ओवरसी करती है। इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द यूके एफसीए, द फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। राइट, पहले लिबोर 5 करेंसीज पे कैलकुलेट होता था, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, यूएस का डॉलर, फिर यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानीज येन। राइट, उसके बाद जब इसका अनाउंसमेंट हुआ रोल बैक का, तो उसके बाद अभी सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में लिबोर जो है वो पब्लिश होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बचा भी नहीं है। अब ये देखो, लिबोर और मिफोर दोनों को फेज आउट कर लिया गया है। मिफोर क्या है? मिफोर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है ना, जो कि कौन पब्लिश करता था? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसको भी हटा लिया गया है ना, इसको भी हटा लिया गया है। तो वही बोल दिया गया है कि भाई कोई भी नई ट्रांजेक्शन जो है वो ये लिबोर मिफोर पे नहीं होंगे अब। ठीक है, इसकी जगह इंडिया में अभी क्या चल रहा है? ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आरबीआई ने बोले हैं, RBI has established a system of alternative reference rates that allows the banks to choose rates from a basket of currencies rather than British pound for international financial transaction. तो अब अगर बैंक्स को इंटरनेशनली कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, कोई पैसा इधर उधर करना है, तो आरबीआई ने 5 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। कौन कौन से हैं ये? यूएस सिक्योर्ड ओवरनेट फाइनेंसिंग रूट, यूरोपियन इंटरबैंक ऑफर, जापान का टोक्यो इंटरबैंक ऑफर, चाइना का शांघाई इंटरबैंक ऑफर, या इंडिया का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। तो एम मिफोर, शिबोर, टिबोर, यूरिबोर एंड सॉफ्र। ठीक है, तो ये है ऑल्टरनेटिव फॉर ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स। लिबोर मिफोर नहीं रहा तो ये आ गए। तो इसमें इंडिया का क्या आपको याद रखना है? इंडिया का है एम मिफोर, द मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक रेट, है ना। आरबीआई ने ऐड कर दिया है मॉडिफाइड मिफोर को सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स की कैटेगरी में। और इसको भी कौन देखता है? एफबीआईएल, यही फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी मैं आपको इस साथ यहाँ बात कर रहा था। ठीक है, क्लियर। फिर आरबीआई ने एक फॉल ब्लैक क्लोज भी डाला इसमें कि जितने भी अभी तक ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट थे जो लिबोर और मिफोर के बेसिस पे हो रहे थे, इनके रेफरेंस में हो रहे थे, वो सब भी अब रिवाइज हो जाएंगे, है ना, किसी ना किसी नए रेफरेंस रेट पे रिवाइज हो जाएंगे। ये जो एफबीआईएल है, ये क्या है? ये 2014 में बनी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। आई एम सो सॉरी, ओके सॉरी, हाँ मेरे को लगा कुछ हो गया गड़बड़। ओके, तो एफबीआईएल फॉर्म इन 2014, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनी थी। जॉइंटली कौन इसको ऑन करता है? 3 ऑर्गेनाइजेशन है, फिम्डा, फेडा, इबा। फिम्डा, फेडा, आईबीए। मेरे को लगता है कि बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है इसको। वही क्या करता है? बेंचमार्क्स वगैरह डेवलप करता है, एडमिनिस्टर करता है, उसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। बात समझ में आ गई? इतना ही है ये। ओके, 2014 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट, जॉइंटली ओन्ड बाय दीज 3, डेवलप करता है, एडमिनिस्टर करता है बेंचमार्क्स को, रेगुलेट करता है इसको आरबीआई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5। तो हमारे पहले 4 टॉपिक खत्म हो गए। देखते हैं अभी कितना कर पाते हैं, आधे घंटे की क्लास और रखते हैं, 2 घंटे बहुत हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो एक G20 टैक्स प्रिंट हुई थी, नाम याद रखना, नाम याद रखना, G20 टैक्स प्रिंट 2023। क्यों हुई है? टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में इनोवेशन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आओ इंप्रूव करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को। तो आपको क्या याद रखना है? G20 की टैक्स प्रिंट हुई थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। इतना लिंकेज याद रखोगे तो क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, G20 की टैक्स प्रिंट हुई थी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। किसने कराई थी? आरबीआई और बीआईएस ने मिलकर। बीआईएस वही बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो बार बार बताता रहता है ये करो वो करो, इतना लगाओ उतना लगाओ। इन दोनों ने मिलकर G20 टैक्स प्रिंट कराई थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। नाउ टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, सबसे पहले इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर होता है जैसे कि स्विफ्ट के थ्रू। फिर इंटरनेशनल मनी ऑर्डर होते हैं,
कोई भी थर्ड पार्टी को आप पैसा पकड़ाते हो वो आपका मनी ऑर्डर दे जाती है। डिजिटल वॉलेट, मैं यहाँ से बैठ के यूपीआई कर सकता हूँ, गूगल पे कर सकता हूँ फॉरेन किसी कंट्री में, और क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी वगैरह से तो होते ही हैं। तो ये हैं अलग अलग टाइप के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। अब इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। एक तो अगर सिंपल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है तो वो कैसे होती है, यहाँ ये बैंक ए है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बैंक्स, जैसे एक बैंक ए है और एक बैंक बी है, तो बैंक ए का बैंक बी में और बैंक बी का बैंक ए में अकाउंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो इस इंसान को $100 भेजने हैं, इस इंसान को, है ना, ये मान लो इंसान ए है, ये इंसान बी है, तो ये इंसान क्या करेगा, $100 यहाँ अपने बैंक को बोलेगा कि वहाँ भेज दो। ये बैंक का जो ये वाला अकाउंट है, बैंक बी के अंदर जो अकाउंट है, वहाँ पे $100 आ जाएंगे। वो $100 ये अपनी करेंसी में यहाँ पे बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये तब होता है जब यूजिंग अकाउंट्स हेल्ड एट ईच अदर्स बैंक, और जब ये अकाउंट नहीं होते हैं तो दे यूज अ कोरस्पॉन्डेंट इंटरमीडियरी बैंक। ये तरीके से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है। इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। फिर ये मेंस के लिए कुछ फैक्ट्स हैं कि इंडिया का क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है वो बढ़ रहा है, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ रही है, एफडीआई इनफ्लो जो है वो इंडिया का अभी $71 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया रिसीव्ड अ टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ $71 ट्रिलियन। ये सब फैक्ट्स आपके मेंस के लिए, बट स्टिल जैसे एक्सपोर्ट पूछ लेता तो थोड़ा सा आपको हल्का सा पता होना चाहिए। टोटल एफडीआई इनफ्लो इंडिया में कितना था, $71 बिलियन, $71 बिलियन। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज हमारे अच्छे खासे रेट पे बढ़ रहे हैं। ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बढ़िया पैसा इंडिया में लेके आती है, $178 बिलियन इंडिया की जीडीपी में लेके आती है। मतलब 200 के आसपास, मान लो $200 बिलियन के आसपास। यहाँ पे टोटल एफडीआई इनफ्लो कितना हो गया, $71 बिलियन के आसपास। फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को ठीक करने के लिए आरबीआई का पेमेंट विजन 2025 आया था, एनपीसीआई का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड आया था, और आरबीआई ने फॉरेन नेशनल्स को बोला था कि आप यूपीआई एक्सेस कर सकते हो। इंडिया यूएई ने सीबीडीसी यूज़ करने के लिए एक एमओयू साइन किया था। तो ये 4 चीज़ें हैं, याद रखना। सीबीडीसी के लिए हमने किसके साथ एमओयू साइन किया है, यूएई। आरबीआई ने फॉरेन नेशनल्स को क्या अलाउ किया है, यूपीआई। एनपीसीआई ने इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड लॉन्च किया ताकि हम क्रॉस बॉर्डर एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई कर सकें। इसमें कई सारी कंट्रीज आ गई हैं, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल, भूटान और भी कंट्रीज हैं। फिर आरबीआई ने क्या लॉन्च किया था, पेमेंट विजन 2025। तो पेमेंट विजन 2025 किसका है, आरबीआई का। ये क्या बोल देगा यहाँ पे, एनपीसीआई वगैरह कुछ दे देगा, नहीं, इट इज़ बाय दी आरबीआई। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर सेबी। तो सेबी ने क्या लॉन्च किया है, 2 चीज़ें। एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। देखो सबसे पहले ये समझो, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनसीडेक्स, एमसेक्स, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे होते हैं। मैं आपसे 2 के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, एनसीडेक्स और एमसीएक्स, क्योंकि ये इनको जनरली डिफरेंस नहीं पता होता लोगों को। देखो एनसीडेक्स और एमसीएक्स ये दोनों ट्रेड करते हैं चीज़ों पे। एमसीएक्स ट्रेड्स अपॉन गोल्ड, सिल्वर, बिलियंस एंड नॉन फेरस मेटल्स, है ना, ऐसे 40 चीज़ों पे एमसीएक्स ट्रेड करता है। एनसीडीएक्स जो है वो डील करता है कमोडिटीज़ पे, इक्विटीज़ पे नहीं। जैसे बीएससी है, एनएससी है, ये इक्विटीज़ पे डील करते हैं। एनसीडीएक्स इक्विटीज़ पे डील नहीं करता, कमोडिटीज़ पे डील करता है। दिस इज अ कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन एग्री कमोडिटीज़। एग्री कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं, वीट, ऑयल, सोयाबीन, ऐसी 34 एग्री कमोडिटीज़ पे एनसीडीएक्स डील करता है। तो कभी ना जो वो वाले चैनल्स नहीं आते, सीएनबीसी आता है ना शायद, हाँ, सीएनबीसी बिजनेस, ऐसे कोई चैनल खोल के देखोगे तो साइड में यहाँ पे चल रहा होता है। तो वो जब एनसीडीएक्स आएगा तो उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें आती हैं, चना, बाजरा, ऐसी कमोडिटीज़ आती रहती हैं। और जब एमसीएक्स आता है तो ये सब आता है। फिर रेट किसका आता है, गोल्ड, सिल्वर, इसका रेट आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, सेबी ने लॉन्च किया है एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टर के रिस्क को रिड्यूस कैसे करना है। इन्वेस्टर के रिस्क को रिड्यूस करने वाला एक प्लेटफॉर्म सेबी ने क्या किया है, बीएससी में लॉन्च कराया है, बीएससी के अंतर्गत लॉन्च कराया है। नाउ द आईआरए platform has been developed to reduce the risk faced by investors in eventuality of technical glitches at the trading members end at both the primary site and the disaster recovery site। क्या वही हो गया, ये जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से कोई भी इन्वेस्टर को जो रिस्क आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया है। तो नाम से समझ में आ रहा है, आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला क्या, सेबी ने लॉन्च किया, दूसरा क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, फिर जो ये प्लेटफॉर्म है जॉइंट क्या है, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस ने मिलके लॉन्च हुआ है बीएससी पे, डेवलप किया है सबने मिलके, और लॉन्च किया किसने है, सेबी ने। किसने किया है, सेबी ने। कहाँ किया है, बीएससी में।
डेवलप किसने किया है? सारे स्टॉक एक्सचेंजेस ने मिलके। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सेबी 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, स्टैचुरी बॉडी है। 1992 में इसको स्टैचुरी स्टेटस दिया। तो जब ये बनाई गई थी तब स्टैचुरी नहीं थी। 1992 में इसको स्टैचुरी स्टेटस दिया गया बाय द सेबी एक्ट ऑफ 1992। इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 9 लोग बैठते हैं। एक सबसे पहले चेयरमैन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 4 फुल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है। इन 4 फुल टाइम 4 पार्ट टाइम में एक मेंबर आता है आरबीआई से, 2 आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 5 आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। बात समझ में आ गई? सेबी में टोटल 9 लोग बैठते हैं, एक चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, 4 फुल टाइम 4 पार्ट टाइम, टोटल 8 मेंबर्स हो गए। इन 8 में से एक आरबीआई के यहाँ से आएगा, 2 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 5 सेंटर से। क्लियर? सेबी के फंक्शंस क्या हैं? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करना, सब रजिस्टर वगैरह करना सारे स्टॉक्स को, स्टॉक ब्रोकर्स को, और इन्वेस्टर एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, इन सबको प्रमोट करना। ठीक है। क्या पावर है सेबी की? पावर्स ऑफ सेबी: क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पेनल्टीज लगा सकती है। ठीक है। कोई भी मनी पूलिंग स्कीम जो 100 करोड़ से ऊपर की बात करती हो, मनी पूल है ना, मनी पूल कर लेते हैं, हमारे चिट फंड में पैसा डाल दो, सब मिलकर पैसा कुछ खरीद लेता है, ऐसी चीज़ को, ऐसी एंटिटीज़ को सेबी रेगुलेट कर सकता है। इसलिए वो सहारा वाले को सेबी रेगुलेट कर रहा था। ठीक है। फिर कैन सीक इन्फॉर्मेशन सच एज टेलीफोन कॉल, डेटा रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैन अंडरटेक एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अगर कुछ गलत हुआ तो। कैन इशू डायरेक्शंस टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सच इंटरमीडियरीज। तो ये कुछ बेसिक सी पावर है सेबी की। वैसे तो आपको सब मतलब ये जेनेरिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, देख के पता चलता है, लेकिन स्टिल, ताकि ऐसे कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता हो, 100 करोड़ टाइप के फैक्ट, या फिर ऐसे पेनल्टी लगा सकता है। क्या क्या याद रखना है ऐसी चीज़ों में से आपको? सबसे पहले ये पेनल्टी लगा सकता है, दूसरा क्या, 100 करोड़ से ऊपर के मनी पूलिंग स्कीम्स को रेगुलेट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मांग सकता है जैसे कि टेलीफोन रिकॉर्ड, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एक्सेस मतलब स्टार्ट कर सकता है, अंडरटेक कर सकता है। ठीक है। क्लियर? ओके, एक दो पेजेस और निपटा लेते हैं। ठीक है। नहीं, 5th टॉपिक पूरा तो नहीं हो पाएगा, 33 पेज तक है। चलो ठीक है, अभी पढ़ते हैं 10-20 मिनट और, फिर देखते हैं कितना होता है ख़त्म ये। रिसेंटली सेबी ने क्या इनिशिएटिव्स लिए? सबसे पहले रिवाइज्ड टाइमलाइन फॉर आईपीओज। आईपीओज के लिए एक रिवाइज टाइमलाइन दी है। पहले आईपीओज को क्या करना होता था? जिस दिन आईपीओ आया, देखो आईपीओ क्या होता है पहले तो यही समझ लो, कोई कंपनी है, उसको पैसा उठाना है लोगों से, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए डालती है कि आओ और मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट करो। तो जैसे आपने सुना होगा कि पेटीएम का आईपीओ हुआ था, है ना, नायका का आईपीओ हुआ था, है ना, पेटीएम का आईपीओ तगड़ा फ्लॉप रहा था, नायका का बढ़िया रहा था, राइट। तो ये इस तरीके से आईपीओ से पैसा उठाती है। अब कंपनी लिस्ट हो गई है, आईपीओ अपना कर रही है, तो पहले क्या था कि पहले उसको 6 दिन मिलते थे, है ना, पहले उसको T+6, टी मतलब जिस दिन उसने आईपीओ दिया, उसके 6 दिन के बाद वो अपने आप को आराम से लिस्ट करती थी, है ना, 6 दिन ले सकती थी। अभी क्या बोल दिया है सेबी ने, दैट द स्टॉक विल हैव टू बी लिस्टेड इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ आईपीओ। जिस दिन आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करी, लोगों ने अपने शेयर्स खरीदे, क्लोज हुआ, उसके बाद आपको 3 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे खुद के स्टॉक्स को लिस्ट करना है। करेक्ट? देखो जो मैं बोल रहा था, आईपीओ रेफर्स टू द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट, है ना, इनिशियली। और ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड होता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि पब्लिक बहुत छोटे छोटे अमाउंट से में शेयर्स खरीद लेती है, सिक्योरिटीज खरीद लेती है। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो जैसे ही सिक्योरिटी वगैरह बिकनी बंद हुई, है ना, जिस दिन ही सिक्योरिटी वगैरह बिकनी बंद हुई, उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो स्टॉक है वो आ जाना चाहिए कहाँ पे? ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। फिर एक BRSR कोर फ्रेमवर्क है, बस ये याद रखो कि ये सेबी लेके आई है, इसकी फुल फॉर्म से बाकी सब समझ में आ जाएगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कैसे हो, सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाना है ना, क्या स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म्स होने चाहिए, स्मॉल टाउन्स में आप हैं कि नहीं है, बिजनेस में कितनी ओपननेस है, जॉब क्रिएशन करते हैं आप कि नहीं करते हैं। फिर एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, ये भी सेबी का ही पार्ट है, सेबी का ही फ्रेमवर्क है। तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वैसे टाइप की चीज़ें एथिक्स जेएस पेपर 4 के लिए बहुत हेल्प करेंगी, कोड करने में इस बार करके भी आया था। तो सेबी का ESG या सेबी का BRSR कोर फ्रेमवर्क प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना है आपको बस कि ये सेबी का है। ठीक है। फिर एक चीज़ होती है डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग। डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग NSE ने अभी उसको कुछ नोटिस जारी किया। डब्बा बॉक्स ट्रेडिंग क्या होती है वो समझ लो। ये इनफॉर्मल ट्रेडिंग है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं, है ना, वो बेट लगाते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो वहाँ पे कोई भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, कोई भी ओनरशिप की ट्रांसफर हो नहीं रही है, सिर्फ बेटिंग हो रही है, राइट। तो दिस इज बेसिकली बेटिंग। तो ये डब्बा ट्रेडिंग है कि डब्बा डब्बा है ना, खाली डब्बा बज रहा है, उसके अंदर कोई स्टॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली डब्बा बज रहा है।
देयर आर नो प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड गेन, इट हेल्प्स द डब्बा ट्रेडर्स टू एस्केप टैक्सेशन। तो कोई टैक्सेशन नहीं लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उस कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा ओनरशिप को, तो टैक्सेशन क्या लगेगा? बेसिक सा बेटिंग होती है यहाँ पे। तो ये एक ऑफेंस है एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, और इसी के चलते अभी एनएससी ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे विच इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो ऑब्वियसली सेबी उनको रेगुलेट करता है। उन्होंने सेबी ने कोई फ्रेमवर्क दिया मैंडेटिंग एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम आइडेंटिफाइड हाई रिस्क एफपीआईज। तो सेबी ने अभी कुछ हाई रिस्क वाले एफपीआईज को बोला है कि आपको कुछ और एडिशनल चीज़ों को, एडिशनल क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एफपीआई होता क्या है और इसमें क्या चलता है। देखो, एफपीआई रेफर्स टू द इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री सच एज वहाँ के स्टॉक्स बॉन्ड्स अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज। किसी भी फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज पे जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली, उनमें इन्वेस्ट करने को हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वहीं ऑन द अदर हैंड जब जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब किसी एंटरप्राइज में आए, है ना, किसी कैपिटल में आए, किसी एज इन फाइनेंशियल एसेट में ना आए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आए, ऐसे किसी एसेट में आए, किसी एंटरप्राइज में आए, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब वो फाइनेंशियल एसेट्स में आए तो, कैपिटल एसेट में आए तो एफडीआई, फाइनेंशियल एसेट में आए तो एफपीआई। हालांकि ये दोनों पार्ट होते हैं एक ही अकाउंट का। बताओ मुझे किस अकाउंट का पार्ट होते हैं एफडीआई एफपीआई, नीचे उसमें कमेंट्स में। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या है? ऑब्वियसली इसको सेबी रेगुलेट करता है, सेबी के पास अपना अलग से रेगुलेशन है, एफपीआई रेगुलेशंस बोलते हैं उनको। उनके अंडर सर्टेन लिमिट्स लगा रखी है कि कोई भी एफपीआई किसी इंडियन सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, यही पूछा भी था एक बार यूपीएससी ने कि इनमें से क्या एफडीआई होता है। तो एफपीआई विद सर्टेन लिमिट्स। तो अगर एफपीआई कुछ लिमिट्स को, कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, एफपीआई विद सर्टेन कंडीशन, सॉरी, एफपीआई अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो उसको एफडीआई क्लासीफाई किया जा सकता है। और एक लिमिट के नीचे जब तक है तब तक वो एफपीआई ही रहेगा। एक लिमिट के ऊपर जाएगा तो उसको एफडीआई ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं इसमें, राइट। फिर ये कुछ एक्ट हैं, वही फेमा, पीएमएलए, पीएमएल रूल्स, इस सब के अंतर्गत ये रेगुलेट किया जाता है। अब इन्वेस्टर क्या है, इसमें एक्टिव होते हैं, इसमें पैसिव होते हैं। ऑब्वियसली एक्टिव इन्वेस्टर्स, उनका पैसा लगा है तो वो देखते हैं कि भाई कैपिटल कैसे रेज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। पैसिव इन्वेस्टर कुछ नहीं, बैठ के अपना पैसा कमा रहा है। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये इनडायरेक्ट होती है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट कैपिटल चीज़ में जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा जा रहा है। हाई कंट्रोल होता है एफडी, इनका बहुत कम कंट्रोल होता है। ये तो बस ऐसे शेयर होल्डर टाइप हो गए। इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने एक इमारत खड़ी करी और कल बेच के निकल गए, ऐसा तो नहीं होता ना। जबकि ये शॉर्ट टर्म है, जब तक इन्हें दिख रहा है किसी बॉन्ड में फायदा तब तक वहाँ इन्वेस्ट करके बैठे हुए, अगले दिन उसको बेच के निकल जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म है ये। फिर ये फिजिकल एसेट्स में होता है, मैं वही आपको समझा रहा था ऊपर, और ये फाइनेंशियल एसेट्स में होता है, राइट। तो कैपिटल एसेट भी ना बोलने के बजाय वी कैन से फिजिकल एसेट्स, एंड इसके लिए वी कैन से फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, क्लियर। फिर ये एंट्री और एग्जिट यहाँ पे डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली वही जो ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि ये, और ये ईजी है, बेच के निकल जाओ। देन ये स्टेबल होता है और ये वॉलेटाइल होता है, इसी रीज़न से। फिर एफपीआई में कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे एक इशू होता है PN3, प्रेस नोट 3। तो प्रेस नोट 3 जो है वो रिक्वायर करता है कि किसी भी एंटिटी जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है वो इंडिया में तभी इन्वेस्ट कर सकती है अगर वो गवर्नमेंट रूट से आती है। तो प्रेस नोट 3 नाम याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एंड दे कैन ओनली डू दैट थ्रू द गवर्नमेंट रूट, दे कैन नॉट डू दैट थ्रू ऑटोमेटिक रूट। नाउ जो ये PN3 है ये एफपीआई इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता, तो ये एफपीआई का एक मेजर लूप होल है। तो इसलिए एफपीआई के तरीके से पैसा डाल के आप PN3 जैसे रूट को, गवर्नमेंट रूट जैसे, गवर्नमेंट अप्रूवल जैसे रूट को आप क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर एक चीज होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एफपीआई में सरकमवेंट करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर को आसान होता है। इसका मतलब समझ लो, देखो अगर दो एंटिटीज आपस में लिस्टेड हैं और वो आपस में कुछ बिजनेस कर रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो बताएं कि हम दोनों पार्टीज रिलेटेड हैं, ताकि ये बात समझी जा सके कि वो आपस में प्रॉफिट शिफ्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, आपस में कोई ऐसे कंपटीशन को कर्व करने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, टैक्सेशन में कुछ इरोजन तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन एफपीआई इनडायरेक्टली इसको सरकमवेंट कर सकता है, इस रिक्वायरमेंट को सरकमवेंट कर सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के इशू को। तो एक PN3 और एक RPT, ये दोनों इश्यूज मेजरली एफपीआई में देखने को मिलते हैं। सेबी का क्या प्रपोजल है कि भाई हम कैटेगराइज करें एफपीआई को 3 तरीके। मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, ये मेंस के लिए है बिल्कुल प्रोफेशनली एकदम, क्योंकि ये अभी सिर्फ प्रपोजल है। लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेजर्स लगाए जो हाई रिस्क वाले हैं, वो अभी सेबी ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ में किया भी है
कि भाई अगर कोई हाई रिस्क वाले पोर्टफोलियो है तो ज़्यादा एडिशनल डिस्क्लोजर्स करें वो अपने बारे में. क्लियर? ओके, सो वी आर डन टिल पेज नंबर 30. अभी के लिए इसको रोक देते हैं. दिस लेक्चर इज ऑलरेडी क्लोज टू 2 आवर्स. आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल. मैं जितना कवर करना चाहता था उससे लगभग 10 पेजेस कम हुए, बट मेरे को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पीड ऐसे हो सकता है स्लो लगी हो, बट यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव ऑन सर्टेन थिंग. देन anything that you need, I'm here for. Please let me know in the comments. Also let me know the questions that I have asked you, if you have understood the concept. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जो PT 365 में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आई है क्या. द मार्क्ड PDF जिस टाइम तक आप ये लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम तक ही अपलोड कर दी गई है अंडरस्टैंड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसके साथ भी पढ़ सकते हैं, उसके बिना भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, बट द मार्क्ड PDF इज ऑलरेडी देयर. क्लियर? तो आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग 30 मोर पेजेस. इसमें 30 हो गए, अगले में 30, फिर 30, तो 3 लेक्चर बना लेंगे हम 30 पेजेस के, एंड वी विल बी डन विद द इकोनॉमिक 365. मैंने ऑलरेडी 46 तक पढ़ रखा है, तो मेरे को 10-12 पेज और पढ़ने, तो मैं सेकंड लेक्चर भी रिकॉर्ड करके जल्दी डाल दूंगा. सो इट इज़ गुड दैट यू वॉच इट ऑन टाइम. ऑलराइट, चलिए फिर लेट अस मीट इन द नेक्स्ट lecture. I hope this was helpful. Do let me know your feedback in the comments. It is very important for me. So please drop a comment. अगर आप यहाँ तक आए तक comment drop करके जाइए. Let's meet in the next lecture. Till then, this is Satyam Jain signing off. Jai Hind, Vande Mataram.